Hello, friends, and welcome to the International Fab Talks. Thank you for being a part of our journey, and thank you for enabling us to understand how the common man could influence your life. How many unsung heroes have been giving their very best to the society. There are several unsung heroes who are doing their very best, and you could be one of them, my dear friends. And yes, friends, today our guest is a special person, a person joining us all the way from Gujarat, Anand. His name is Dr. Vikram Jogarna. He is the founder of a wonderful NGO, which we'll be discussing very soon. And of course, he is also the assistant professor of the university, which we'll be discussing very soon. So we have a special person who's out here to share his thoughts and views and how he is influencing the society, how an unsung hero could really give back to the society in a large way. You could be the next Dr. Vikram Jogarna. Join us, friends, to introduce and welcome our special celebrity. Hello, sir, and welcome to the session. Thank you. Thank you, sir. My dear friends, he is Dr. Vikram Jogarna, a person who's very calm, kind, and lovable, approachable. He has a lot of passion towards humanity. Let's get to know more about him by sharing his profile. Sir, आपका प्रोफाइल अभी हम शेयर करेंगे सर आपके इजाजत के साथ. Sure, done. Thank you very much. Dear friends, it's a pleasure and a honor to share the profile of our special celebrity today. He is Dr. Vikram Jogarna, the founder of an NGO named Madhuvan Foundation. As I said, I will let you know later. Madhuvan Foundation, he founded this beautiful NGO and it is located in Anand, Gujarat, and Gujarat is located in India. He has completed his BA, MSW, that is Masters in Social Work, MPhil from the Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar of Gujarat State. Now he has also completed his PhD in social work. The subject of the research topic was a study of contractual employees in relations to job satisfaction and productivity. Dear friends, a study undertaken in selected NGOs of Gujarat from the Department of Social Work at the Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, Anand. Apart from the professional qualifications, he has obtained other degrees as well, such as the Certificate in NGO Management, CNM, and Postgraduate Diploma in Human Rights Education. He has written a book titled a socio-economic and educational study of Bharwad community. He has also passed Gujarat state eligibility test. There is some type of a test called as Gujarat state eligibility test, and it is called as GSET or GSET in the month of December 2019. He has also worked on the research projects, namely a study on quality life of pregnant women after delivery and a socio-economic and educational status of BPL families in Vallabh Vidyanagar. He has worked as a project fellow in the SEED grant program titled Spatial and Regression Analysis of Determinants of Declining Juvenile Sex Ratio in Gujarat in 2013, jointly funded by the Department of Social Work, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar. He has worked as an assistant professor in the Department of Social Work at N.S. Patel Arts College, Anand, from 2015 to 2017. He also worked as an assistant professor in Jeev Karan Institute of Social Work, Vallabh Vidyanagar, from 2017 to 18. Presently, he is working as an assistant professor in Anand Law College, Anand, and also serving his duties as an NSS program officer in this college. Currently, he is the founder and the working president of Madhuvan Foundation, Vallabh Vidyanagar. Since 2012, sir is running this beautiful organization. Madhuvan Foundation is working as an NGO since 2011, and it undertakes a lot of trainings, documentation, grassroots action research, advocacy, campaigning in partnership with stakeholders, including individuals, groups, communities, members, civil society representatives, and other state and individual actors. Madhuvan Foundation is working for enhancing and equipping equality of life for different segments of the society. Sir has presented a number of research papers in various national and international conferences and workshops, seminars, etc., online and offline as well.
He has also published a number of research papers in various national, international journals, peer-reviewed journals, and referred journals as well. And apart from this, sir is a great human being to connect with, a polite person and a humble one. To get to know more about our celebrity, चलिए हमारे साथ आज का इंटरव्यू के लिए हम सर के साथ करेंगे, उनके काम और उनके सोच विचार देखेंगे कि हम पर क्या प्रभाव ला सकती है, क्या बदलाव ला सकती है हमारी सोच में। डियर सर, आप हमारे इनविटेशन स्वीकार किया, धन्यवाद। थैंक यू। Thank you and thank you so much. Thank you very much. Dear sir, it's a pleasure that you accepted the invitation. बहुत शुक्रिया sir. Friends, when you accept an invitation on the International Fab Talks, it is a moment of joy, not only for us, for everyone, because the unsung heroes are opening up and sharing their work, their space. You could also be sharing your space with us and enlightening the world. Let us make a beautiful world for you, for me, and for everyone. Yes, sir. पहली राउंड का इंटरव्यू ऐसा होगा। पहला प्रश्न, आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विक्रम जोगरना जी कौन है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मैडम कि मुझे इस इंटरनेशनल फैब टॉक्स 23-24 में लास्ट मंथ में आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। गर्व की बात यह है कि मैं बता सकता हूँ कि 2023 में मैंने इंटरव्यू दिया था। हाल ही में 2024 आने वाला है, 15 days आर लेफ्ट, राइट। सो जनरली तो मेरे बारे में ऐसा बताया जाए तो मैं एक सोचता हूँ कि राइट नाउ आई एम ए सोशल वर्कर। मैं एक समाज सेवक के हिसाब से अभी काम करता हूँ। जहाँ पे भी ज़रूरत लगे, जहाँ पे भी एनजीओ के हिसाब से मैं ज़रूरत से हिसाब से काम कर पाऊँ। मैं सोचता हूँ कि लोगों को मतलब एक 0.01% भी हम कहीं हेल्प कर पाएँ, एम्पावर कर पाएँ किसी को, तो उसके लिए मैं काम करना बेहतर समझूँगा अपनी लाइफ में। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जिसमें मतलब रोल होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैंने काम किया है, एज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है, एज़ एन रिसर्च फेलो काम किया है। पर मेरे को जिस हिसाब से देखना चाहता हूँ वो मेरा सबसे बड़ा मेन रोल है एज़ ए सोशल वर्कर, और उस नाम से मुझे जाना जाए, उस नाम से मुझे पहचाना जाए और उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं अभी तो फ़िलहाल के लिए तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे को एज़ ए सोशल वर्कर ही कोई जाना जाए। जी। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बात अच्छा लगा कि थोड़ा भी प्रभाव किसी की जिंदगी में ला सकते हैं, थोड़ा सा जी। बदलाव, थोड़ा सा एम्पावरमेंट, एक इंसान भी हो तो भी चलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़े लोग क्या सोचते हैं सर कि भाई बहुत सारे लोगों को प्रभावित करना, आकर्षित जी। करना, चेंज लाना है। अगर एक इंसान भी बदल गए तो वो एक जीत हमारे लिए है। जी, तो हमारे लिए। ये है सबसे बड़ी अच्छी बात है एक सोशल वर्कर का। तो आप इस फील्ड में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है सर। आपका इंस्पिरेशन कौन था कि भाई इस फील्ड में उतरना है, सोशल वर्क करनी है सबको, मुझे समाज को कुछ देना है, देना नहीं लेना भी है और देना भी है। तो आप अभी ऐसे मोड़ पे आए हैं कि आप यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो यस। आपका इंस्पिरेशन कौन था सर? इंस्पिरेशन की मैं बात करूँ तो जब मैं 2010 में मैंने मास्टर्स के लिए जब अप्लाई किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उस टाइम के लिए जनरली मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, हम ज़्यादातर मानते हैं कृष्ण भगवान को, और श्री कृष्ण भगवान जो है हमारे मतलब आइडियल मेरे लिए तो वही है। उनका जो वर्क है उनका जो नेचर है और उन्होंने जिस हिसाब से कम्युनिटी के लिए काम किया है, जहाँ पे जैसे रोल के हिसाब से ज़रूरत पड़ी, तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया है, सब कम्युनिटी को एम्पावर किया है। तो मेरे लिए तो आइडियल वही है, रोल मॉडल भी मेरे लिए कृष्ण भगवान ही है, और उसको हमने एक आइडियल गॉड है हमारे लिए है, तो उनके हिसाब से मैंने सोचा कि हम भी कुछ कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये था कि करना क्या है? एक तो ना सोशल वर्क का नॉलेज है, ना कम्युनिटी के लिए कुछ करने के लिए मतलब हौसला है, कुछ भी नहीं था। सोशल वर्क में एडमिशन लिया, एक प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई किया था, एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे प्रोग्राम हो रहा था और उसकी एक रैली का गवर्नमेंट स्कूल के साथ मिलके मुझे प्लान करना था। तो वो रैली बहुत अच्छे से हमने प्लान किया, प्लान करने के बाद मुझे लगा अच्छा ये तो कोई एनजीओ करती है। उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एनजीओ होनी चाहिए और रोल मॉडल हमारे कृष्ण भगवान है, तो क्या एक आइडेंटिटी होती है। अब मैं काम तो करना चाहता हूँ पर आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? तो उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए कृष्ण भगवान को मैं रोल मॉडल मानता हूँ, तो उस हिसाब से सोच रहा था कि मतलब जिस रोल में जहाँ पे एज़ ए मीडिएटर ज़रूर पड़े, तो हमारा वर्क मेनली क्या होना चाहिए? मीडिएटर होना चाहिए। ना कुछ लेना, ना कुछ देना, वो तो अलग चीज़ हो गई। पर जनरली एक मतलब शुद्ध हिंदी में मैं बात करूँ तो स्वार्थ, बिना स्वार्थ के कोई हम काम नहीं करते, तो मैं भी ऐसा मानता हूँ कि मेरा भी एक स्वार्थ है। पर स्वार्थ एक नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, स्वार्थ एक पॉजिटिव वर्ड्स है। आप उसको पॉजिटिव के हिसाब से ले सकते हो। तो जनरली काम करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिटी का पर्सन कोई हमारे साथ हेल्प मांगे तो उनका एक स्वार्थ है कि उनको कुछ मदद चाहिए।
मदद वो इनका स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ ये है कि हमें उसके लिए कुछ आत्मसंतोष मिलेगा, हमारी आत्मा को कुछ शांति मिले, मतलब लगेगा कि कुछ हम कर रहे हैं। और वो भी मेरा एक स्वार्थ ही है कि मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ पहले, कम्युनिटी के लिए तो मैं बाद में कर, पर मेरे लिए तो मैं कर रहा हूँ ना, कि चलो मेरा ये स्वार्थ है कि मैं किसी का कुछ हेल्प कर दूँ और मुझे कुछ मतलब अच्छा फील होगा। और जब भी आप प्राउड फील करते हो तो जब आपको नींद कब ज़्यादा आती है, जब आप किसी का कुछ अच्छा करके आते हो ना, सबसे ज़्यादा नींद उसी दिन आती है। तो ये मैं मतलब ऐसा मानता हूँ कि भगवान के हिसाब से जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत सारे मतलब रोल अदा किए एज़ ए मीडिएटर, तो उस हिसाब से हम भी सोचते हैं कि मतलब कोई भी फील्ड में कहाँ पे भी ज़रूरत हो, तो हम एज़ ए मीडिएटर रोल अदा करें और हमारा स्वार्थ जो है और सामने वाला के भी स्वार्थ है, वो पॉज़िटिव में कन्वर्ट हो और हम उसको कुछ अच्छा कर पाएँ। तो मेनली यही है कि रोल मॉडल तो और आइडियल मेरे लिए तो भगवान कृष्ण ही है। जी जी, बहुत अच्छा शेयरिंग सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि भाई हमारे स्वार्थ भी उसमें होगा, थोड़ा सा किसी का मदद करे तो हमें अच्छा लगेगा, जी। किसी का काम आए हमको अच्छा लग, उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छी लगती है। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और आपने बोला, शेयर किया कि भगवान कृष्ण है आपका और इंस्पिरेशन, जी सो हाँ। दैट्स रियली नाइस। डियर सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब सोशल वर्क ऐसा काम है जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। जी। तो आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आते होंगे, आ चुके हैं भी और आए, प्रेजेंट भी है, थोड़े चैलेंजेस होंगे, कनेक्शन हो गए, तो जी। आप इनसे कैसे फेस कर रहे हैं? हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल द चैलेंजेस, किस तरह मैनेज कर पा रहे हैं आप? सोशल वर्क फील्ड ही ऐसा है कि जनरली देखा जाए तो चैलेंजेस कोई फील्ड ऐसा नहीं जिसमें ना आए, और पर्टिकुलरली जब आप सोशल वर्क का मतलब काम कर रहे हैं तो आपको आएगा ही। जनरली एक बात करते हैं कि कोई भी कम्युनिटी में आप जाते हो तो हमारा एक हिस्सा होता है। आपको लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हो? तो जनरली पहला क्वेश्चन है आप क्या कर रहे हो? और इन केस आपने बता दिया कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, तो लोगों के दिमाग में पहला यही दिमाग में आएगा, भाई खुद का कुछ काम कर, फिर उसके बाद समाज सेवा करना। खुद के कम्युनिटी के लिए कुछ कर, उसके बाद समाज सेवा करना। तो एक तो पहला जो सुनने वाला चैलेंजेस है कि आपका जो लिसनिंग स्किल है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इस फील्ड में आपको रहना है तो। ताने-ताने के बहाने मिलेंगे आपको, ताने भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको सँभलना भी होगा और सँभालना भी होगा। तो उस टाइम पे लिए कि आपका सबसे पहला स्किल होना चाहिए लिसनिंग स्किल, कि आपको लोगों को सुनना पड़ेगा। आपको मतलब लग रहा है कि सुनने जैसा है या नहीं लग रहा है, फिर भी आपको एक बार तो सुनना ही पड़ेगा क्योंकि आप काम कर रहे हो और काम करने वालों को ये सारी चीज़ें आने ही वाली है। तो जो चैलेंजेस है वो एक तो पहले ये है कि कम्युनिटी के हिसाब से आप कैसा सोच रहे हो, आपके बारे में कम्युनिटी क्या सोच रही है, तो उसको थोड़ा ओवरटेक करके आपको सोचना है। आपको प्रॉब्लम तो होगा ही, आप चले जा रहे हो किसी को हेल्प करने के लिए जा रहे हो या किसी की मदद करने के लिए आप जा रहे हो, तो उसके बाद आपका बहुत सारा वर्क भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं जनरली मेरी बात करूँ तो मैं जॉब भी करता हूँ साइड में, और ये मेरा विज़न है कि मतलब साइड बाय साइड ये पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसा एज़ अ वॉलंटियर बेस चला रहे हैं। आज भी हम उसमें चैलेंजेस की बात करते हैं, उसके हिसाब से फिर भी हमारा एनजीओ अभी आज भी इंटरनेशनल लेवल पे हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ आते हैं, इंक्लूडिंग गुजरात से भी आते हैं, सोशल वर्क के आते हैं, लॉ के आते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के आते हैं, आईटी फील्ड के आते हैं। तो ये आते रहते हैं, पर फिर भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन वन काइंड ऑफ वॉलंटियर बेस चल रहा है। ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है कि हमारे यहाँ सिंगल कोई ऑफिशियल स्टाफ, इंक्लूडिंग मैं भी फाउंडर प्रेसिडेंट, तो मैं भी एक वॉलंटियर ही हूँ, क्योंकि मेरे को भी कुछ काम करना है, कम्युनिटी के लिए कुछ करना है तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। तो जो चैलेंजेस की बात करें, एक तो सबसे पहला टाइम है कि कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई जगह पे प्रोग्राम में टाइम दिया है, 5 बजे का बोला है, हो सकता है वहाँ पे कुछ आपका ऐसा प्रॉब्लम आ गया, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई, अर्जेंट कोई बॉस के साथ मीटिंग हो गई, तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे और कम्युनिटी में आपकी इमेज क्या जाएगी, अच्छा इनको कुछ पड़ी नहीं है, वो तो सिर्फ बताते हैं, सोशल मीडिया में फ़ोटो रखने के लिए आते हैं, टाइम पे नहीं आते। तो ये सब सुनना है आपको, और सुनने के बाद भी आपको थोड़ा आगे बढ़ते रहना है। जब उनको रियलिटी समझ में आती है तब क्या होता है, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि सब लोग आपको कभी जानते नहीं हैं। तो सबसे पहला चैलेंजेस ये है कि वॉलंटियर जो हमारे साथ है ना, वॉलंटियर को मैनेज कैसे करना। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने वॉलंटियर ने आपको कॉल किया, आप नहीं रिसीव कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है आपने किसी प्रोग्राम के लिए कमिटमेंट कर दिया, वो प्रोग्राम में आप नहीं भी जा पाओगे, फिर भी आपका प्रोग्राम चलना चाहिए। तो आपको ऐसा एक बैकअप प्लान रख के चलना है, ऐसे उस हिसाब से मैनेज करना है। कोई भी आपने चीफ गेस्ट भी बुलाया है, कोई भी प्रेसिडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल मधुबन के प्रेसिडेंट को बुलाया है और इन केस इमरजेंसी में वो ना आ पाए, तो आपका बैकअप प्लान क्या है? तो सबसे पहले आपका बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। विदाउट बैकअप प्लान कुछ भी हो सकता है। मैं एक जनरल बात करूँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैंने एक विलेज में काम करना स्टार्ट किया और उस विलेज में हमने हेल्थ चेकअप कैंप प्लान किया। सरपंच के साथ बहुत अच्छे से बात हो गई, सरपंच ने 15 दिन पहले हमको परमिशन भी दे दिया। और उसके बाद जिस दिन हमारा प्रोग्राम है, उसी दिन सुबह मॉर्निंग में सरपंच की फैमिली, उसकी मदर या फादर की डेथ हो गई।
सारा प्रोग्राम उसके घर पे था, सारा माहौल हो गया था, मंडप बना दिया था, हमने उसके लिए अरेंजमेंट कर दिया था, खाने-पीना, रहने सब कुछ अरेंजमेंट हो गया था, पूरे डॉक्टर की टीम भी रेडी थी। उसी दिन मॉर्निंग में जब आपको ये न्यूज़ मिलती है कि सरपंच के वहाँ उसके फादर या मदर की डेथ हो गई, तो आप क्या करोगे? सडनली आप पूरा प्लान चेंज कैसे करोगे? उसके लिए पहले से एक बैकअप प्लान रखो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका कोई भी प्लान कैंसल होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? सडनली आपके पास एक बैकअप प्लान के लिए कोई जगह होनी चाहिए। सरपंच के साथ ऐसा हुआ तो सरपंच भी पॉजिटिव होते हैं। उनको भी पता है कि बहुत टाइम से ये मैनेज चल रहा है और गाँव के भले के लिए कर रहे हैं हम। कोई इसमें ऐसा नहीं कि कुछ वही मतलब इलेक्शन के प्रचार के लिए आए हैं या कोई धर्म का प्रचार के लिए आए, तो थोड़ा बहुत लोग सोच सकते हैं। पर जब गाँव के लिए हमने हेल्थ चेकअप कैंप का प्लान किया है, तो वो भी सपोर्ट करेंगे। सडनली आप कोई गवर्नमेंट स्कूल का बिल्डिंग ले लो, उसके बाद सरपंच के कोई और रिलेटिव्स का घर ले लो, कुछ भी ले लो। सिर्फ आपको क्या करना है, प्लेस चेंज कर देना है और वही लोग समझेंगे, वही लोग सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमेशा आपको बैकअप प्लान रख के चलना चाहिए। तो ये चैलेंजेस है, तो ये ऐसी बहुत सारी फील्ड में चैलेंजेस आती रहती है। और ये जो रिलेटिव्स की बात की हमने सरपंच के, उसी हिसाब से वॉलंटियर को कैसे मैनेज करें? कि आपका बैकअप प्लान है नहीं, वॉलंटियर को बोल दिया कि कल प्रोग्राम में पहुँच जाना, वॉलंटियर नहीं आया, मेरा कॉल नहीं लग रहा है, ऑफ़िस में किसी बंदे का कॉल नहीं लग रहा है, तो सबसे बड़ा हर्डल ये है कि मैनेजमेंट चेन है वो प्रॉपर होना चाहिए। हमेशा उसमें बैकअप प्लान होना चाहिए। उसके अलावा एक ये चैलेंजेस है कि आपको समाज में रहना है, काम करना है। तो देखो फंड रेज़िंग आपका चैलेंजेस है। वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि इंडिया में फंड रेज़िंग बड़ा चैलेंजेस है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपको देने के लिए ऐसे लोग तैयार हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। और उनको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। जनरली कोई एनजीओ रजिस्टर होता है तो ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत होता है। तो ट्रस्ट मतलब वो है कि भरोसा। तो ट्रस्ट के ऊपर किसी को ट्रस्ट होगा तो आपको कोई देगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप जो ट्रस्ट रजिस्टर कर रहे हो, उस ट्रस्ट का एक ट्रस्ट बनाना है। ट्रस्ट कौन-सा? वो वाला ट्रस्ट, जो विश्वास वाला ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है। और उस लेवल के आपको उस हिसाब से पहुँचना है, तब आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा, तब आपको ये सारी चैलेंजेज़ जो आएँगी, उसको आपको हेल्प करना है। अच्छा, चैलेंजेस फील्ड ऐसा है, कोई भी फील्ड में जाओ तो रहने तो वाला है ही। तो जनरली मधुबन की मैं बात करूँ, मैंने जिस एनजीओ चलाते तो टाइम में थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे पास। वॉलंटियर को मैनेज करना, अच्छा। कई बार ऐसा होता है जिस कम्युनिटी के बच्चे के लिए काम करें, उस बच्चे को हमें क्या करना है 5 साल, 10 साल के लिए आगे लेके जाना है, तब हम कुछ रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने 1000 बच्चों को 1 दिन में ट्रेनिंग दे दिया, बहुत बड़ा पेपर में नाम आ गया, मेरा फ़ोटो आ गया, सोशल मीडिया पे रख दिया, लग गया कि मधुबन फाउंडेशन ने 1000 बच्चों को ट्रेनिंग दिया, वो नहीं होना चाहिए। 1000 में से भी 5 बच्चे ऐसे हों कि जिसको 1, 2 साल, 3 साल ट्रेनिंग देने के बाद उसमें कुछ रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम मिले और वो बच्चा कहीं आगे जाके कुछ बन पाए। तो अभी हमारा फ़ोकस जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें यही है कि हम ऐसे बच्चों के लिए काम करें जिसमें हम उसको कुछ रिज़ल्ट दे पाएँ। हमारे पास नंबर होने चाहिए, 5000 नंबर नहीं चाहिए, हमें 5 ही नंबर चाहिए कि ये 5 बच्चों को हमने पहले से डेवलप किया और 5 साल के बाद इनका रिज़ल्ट ये है और उसका आउटपुट ये आपको दिख रहा है, उसका ग्राफ दिखना चाहिए, रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। तो सबसे बड़ी ये सारी चैलेंजेस है और इस चैलेंजेस को हम ओवरकम करने के लिए अभी ट्राई भी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो अभी इतना मुझे लग रहा है कि वॉलंटियर मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है और फंड रेज़िंग है। फंडिंग जो है वो एनजीओ का हार्ट है और वो हार्ट को बचा के दबकारा मतलब उसके दबक तो रखने के लिए आपको कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े उनपे इनपुट्स डालते रहने हैं और उस हिसाब से हमको मैनेज करना है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं अभी के लिए। जी भाई साहब, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि भाई बैकअप प्लान रहना है। तो instead of getting stressed out, always have a backup plan in life. If plan A doesn't work, plan B, plan C. You should be ready like that. जी। You explained it very well, sir. बहुत क्लैरिटी आपने दिया कि भाई एक एनजीओ कैसे चलती है, कौन कहाँ चैलेंजेस आती है, कैसे संभालनी है, कंसंट्रेशन कहाँ पर देनी है। यू हैव डन इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। डियर सर, ऐसा कोई अच्छा किताब है जो जहां पर हमको कुछ सीख मिलेगी उस किताब से, चाहे वो एनजीओ से कनेक्टेड हो या एक समाज के लिए कुछ बदलाव ला सकती है ऐसा किताब? हुँ। अ, एक तो मैं जनरली मानता हूँ किताब तो एक तो है सबसे बेस्ट जो किताब है वो भगवत गीता है, जिसके ऊपर हम ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए गए हैं, जो हमें समझना चाहिए। उसके अलावा सोशल वर्क की एक मतलब गुजराती में किताब है, कबे कोथड़ो देश मोकळो, एक सोनल बंसल की एक किताब है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। एग्ज़ैक्ट उसका मुझे अभी नाम तो याद नहीं है इंग्लिश का, पर वो भी है जिसमें उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ लिए हैं, जिसको मतलब ज़ीरो से लेके मतलब अभी जिस फ़ील्ड में इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचाने के लिए उन्होंने किस हिसाब से मैनेज किया। फिर ये सुलभ शौचालय वाला एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि उन्होंने ज़ीरो से लेके अभी कहाँ तक उन्होंने पहुँचा, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। तो ये 2-4 केस स्टडीज़ हैं जो मैंने पढ़े हुए हैं मेरे लाइफ़ में, तो उसके ऊपर से मैं थोड़ा मतलब प्रेरणा लेता हूँ, उसके ऊपर से थोड़ा फ़ोकस करता हूँ और थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ। जी सर।
जी सर, आपके बचपन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि भाई आप किस तरह के बच्चे थे, नटखट वाले बच्चे थे या खामोश? बचपन के बारे में बताऊँ तो थोड़ा नटखट तो है ही पहले से, वो तो थोड़ा बहुत था। ज़्यादा पहले तो थोड़ा स्टडी में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी थोड़ा-थोड़ा जैसे समझ में आ गए। मैं बचपन में जिस गाँव में रहा हूँ, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पे हमारा ऐसा था सबसे पहले पानी का प्रॉब्लम था। तो हम ये अभी तो ख़ैर गुजरात में अच्छा चल रहा है कि नर्मदा नदी है, उसका पानी आ गया है। बाकी हम 7 दिन, 10 दिन पीने का पानी हमें नहीं मिलता था, तो हमें सँभाल के पीने का पानी रखना था। 10-10 किलोमीटर तक हम पानी भरने के लिए जाते थे। जो वाटर प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत था, अभी इतना नहीं है। तो 10 दिन तक पानी का प्रॉब्लम था, तो वो हम पानी के लिए बहुत कुछ घूमते थे, साइकिल लेके जाते थे, साइकिल के पीछे वो प्लास्टिक का ड्रम लगाए हुए और 10 किलोमीटर तक पानी भरने जाना। एक सिचुएशन ऐसा है उस टाइम पे हमने ऐसा भी मैंने देखा है कि जनरली पानी के लिए मतलब एक टैंकर आता है, उस टैंकर में जिस हिसाब से राशन कार्ड में अनाज बाँटा जाता है, जिस हिसाब से केरोसिन दिया जाता है, उस हिसाब से हमें एक जो तेल का डिब्बा आता है, उस हिसाब से एक-एक डिब्बा पानी मतलब आपके घर में 5 मेंबर्स हैं तो 5 डिब्बा ही आपको पीने का पानी मिलेगा, आपको 5 दिन चलाना है। तो वैसी सिचुएशन भी मैंने देखी है, तो उस टाइम पे हम थोड़े नटखट ऐसे थे, गाँव में घूमने जाना, तालाब में मतलब वो चले जाना, बिना बताए पेरेंट्स को, तो थोड़ा बहुत ऐसा कर लेते थे। और नहाने के लिए बहुत इंटरेस्ट था वहाँ पे उस टाइम पे। तो गाँव के बच्चे तो कैसा है कि पेरेंट्स को थोड़ा बहुत बोले बिना निकल जाते थे और तालाब में नहाने चले गए, उसके बाद 2 घंटे, 3 घंटे बाद आते, तो ऐसा होता था कि आँख में वो आँख हमारी लाल हो जाती, पानी में ज़्यादा हम रहते थे। तो घर आने से पहले आधे घंटे हम सोचते थे कि किसी की आँख लाल नहीं है ना, तो वैसा बताते थे फ्रेंड्स को मिलके कि भई हम किसी की आँख लाल पता नहीं चला कि हम इतना 2-2 3-3 घंटे वो तालाब में नहा के आए हैं। तो उस टाइम शरारत थोड़ी करते थे। हाँ, एक चीज़ था कि हमने आज तक हमारे पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोला है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो, तो मेरे पेरेंट्स तो फार्मर हैं मेरे फादर, तो वो गाँव में खेती करते हैं आज भी, तो कभी आज तक मैंने झूठ नहीं बोला है। खेती में भी हम हेल्प करने के लिए जाते थे, बहुत बार हमने काम किया है। तो गाँव में पशुपालन भी हमारा है, तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत हेल्प किया है। पशुपालन का व्यवसाय हमारा है तो। थोड़ा बहुत जैसे-जैसे बढ़ते गए मैं 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तब तक थोड़े नौटंकी करते थे, थोड़ा नटखट थे, थोड़ा बहुत 11th-12th में समझ में आया। ग्रेजुएशन में थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा इलेक्शन का माहौल था, स्टूडेंट यूनियन का माहौल था, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं एक जीएस का यहाँ पे कॉलेज में इलेक्शन लड़ा था, तो थोड़ा क्या है कि वो बच्चे जोश में आ जाते, थोड़ा कॉलेज में वो तोड़-फोड़ कर दिया। इलेक्शन में मैं बिनहरीफ था, मेरे सामने वैसे किसी ने फॉर्म नहीं भरा था, पर समहाउ एक माहौल था कि मुझे नहीं बनाने चाहते थे लोग। तो मेरे सामने किसी ने फॉर्म भी नहीं भरा था, तो वो ऑप्शन ही नहीं था। तो 5 मिनट में फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। ग्रेजुएशन के टाइम तक ये सब चला 2010 तक, उसके बाद मतलब पूरा जैसे मैंने 2011 में एनजीओ स्टार्ट किया, मतलब एक डाइवर्जन आ गया, जैसे एक्सप्रेसवे में आप जा रहे हो अहमदाबाद टू बड़ौदा और बीच में पहुँचे उधर सडनली टर्न ले लिया और वापस आप बड़ौदा पे मुड़ गए। तो ऐसा एक डाइवर्जन ग्रेजुएशन के बाद आ गया मेरी लाइफ में। तो थोड़ा बहुत शरारत करते थे, पर पेरेंट्स को कभी झूठ नहीं बोला आज तक। जी जी सर, मुझे ये बात अच्छी लगी कि भाई पूरे दोस्त की भाई मेरे आंख लाल है या नहीं जी। देखिए। वो हाँ। मजेदार बात था। जब ये तालाब में आप लोग तैरते थे और खेलते 2-3 घंटे, जी। वहां पर ये छोटे से सांप ऐसा कुछ आपको डर नहीं लगता था सर? गाँव का माहौल ही ऐसा है कि गाँव में वहाँ पे बच्चे सब यही करते, तो वहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं था। मतलब वो थोड़े बहुत बिच्छू का या फिर वो छोटे साँप का वो तो डर रहता है। पर जिस हिसाब से हम लोग जाते हैं बच्चे मतलब पूरा ग्रुप होता है तो वो मतलब दिमाग में कुछ होता ही नहीं। तालाब में 2-2 3-3 घंटे वो तैरना और ये सब करना उसमें मज़ा आता था। तो जी वो कोई डर नहीं था और गाँव में क्या है कि कहीं न कुछ वहाँ पे देसी जुगाड़ या कुछ होता ही था। तो किसी को कुछ हुआ तो देखा ही था कि ये सब हो रहा है लाइफ़ में। तो इतना कुछ डर रहता नहीं था उस टाइम के लिए, मज़ा आता था। जी जी जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सर। डियर सर, इस दुनिया आपको कैसा याद करना है, क्यों याद करना है विक्रम जी को? अ जनरली ऐसा देखा जाए तो कि मैं मतलब मेरी लाइफ में ऐसा सोचता हूँ कि मुझे कोई जाने जाए तो एक तो सोशल वर्कर के हिसाब से जाने जाए। मेरा विज़न है, उस विज़न के अंदर मेरे 3-4 मतलब पर्सनली मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किए। उसके ऊपर मेरा अभी फ़ोकस चल रहा है। मतलब ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे मैं काम करूँ, ऐसा कुछ मतलब डेवलपमेंट के लिए हम काम करें जिसमें कम्युनिटी को सच में एम्पावर होना पड़े, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। जनरली बात करते हैं हम किसी को कुछ ज़रूरत है, हम ₹5000 दे देते हैं, वो देना नहीं है किसी को। आप पैसे क्यों दे रहे हो? ऐसा एक टूल या इन्वेस्टमेंट करके उनको दो जिसमें वो हर रोज़ ₹5000 कमाएँ और पूरी कम्युनिटी को डेवलप करें। जैसे हम बात करें गवर्नमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट पे अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है? हेल्थ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है? हेल्थ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरा एक गौशाला वाला प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर मेरा विज़न है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें 51 काऊ का बेसिक प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो गीर गाय की गौशाला है, काऊ की बात कर रहा हूँ मैं।
जो गुजरात में यहाँ फेमस है गिर गाय, और उसका जो मिल्क है, जो दूध है, वो इतना प्योर आता है कि जिसमें न्यूट्रिशन बहुत हाई होता है। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर अभी मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत अच्छा हमारा एक गिर गाय का गौशाला होगा, और जिसमें जो मिल्क मिलेगा, जो गाय का दूध आएगा, वो दूध हम कहीं सेल करने नहीं जाएंगे। वो दूध का हमारा विजन ये है कि एक से के साथ हमारे 2 प्रोजेक्ट चलेंगे, जिसमें विजन ये है कि जिस एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं आनंद डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्टिकुलरली जिस महिला की डिलीवरी होती है, क्योंकि महिला को डिलीवरी के बाद वहाँ पे न्यूट्रिशन फूड की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है, मैं इतना हेल्थ में एक्सपर्ट नहीं हूँ और थोड़ा बहुत मुझे इतना पता भी नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि उस टाइम पे न्यूट्रिशन की हाई मतलब ज़रूरत ज़्यादा है उनको। तो उस महिला को 6 महीने तक दोनों टाइम उसको 500-500 मिलीग्राम दूध उनको हर महिला को पहुँचाया जाए, जिसको 6 महीने तक न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरत है, तब उनको ये प्रोजेक्ट के हिसाब से हम पहुँचाएँ। तो क्या होगा, एक तो उनका खुद का हेल्थ थोड़ा अच्छा बनेगा, और जो आने वाला बच्चा है, जो बच्चा मतलब है, जो बेबी का बॉर्न हुआ है, उसको भी न्यूट्रिशन मिलेगा, और उससे क्या होगा, वो बच्चा थोड़ा हेल्दी बनेगा। तो इसके ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं हम कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पे काम शुरू करें, इसके ऊपर थोड़ा काम करके उसको बड़े लेवल पे ले जाएँ। हो सकता है इन फ्यूचर ये 51 से 5100 भी पहुँच जाए हम, कुछ और भी उसमें से आउटपुट मिले। अच्छा, इसमें से कुछ और भी ऐसे मुद्दे निकल आए जिसमें हम कुछ ग्रास रूट लेवल के लोगों के साथ मिलके कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसके हिसाब से कुछ और भी लोगों को हम ज़रूरत के हिसाब से उसको एम्पावर करके नौकरी भी दे पाएँ। तो ये मल्टी टैलेंटेड प्रोजेक्ट है। तो दुनिया तो मुझे मतलब इतना कुछ ऐसा कोई ख़ास शौक नहीं है नाम का पहचान का ये मतलब ब्रांड होना चाहिए। हाँ, एक ऐसा है कि मतलब मैं किसी और ब्रांड को ज़्यादा मतलब फ़ॉलो मेरी लाइफ़ में कभी मैंने किया नहीं है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो सोचता हूँ कि मधुबन मेरा खुद का एक ब्रांड है, तो मैं हर जगह उनको ही प्रमोट करूँ। तो मेरे को ज़्यादा लोग जाने ना जाने, मधुबन को तो लोग जानने ही चाहिए। तो मधुबन एक ब्रांड बने, और उस ब्रांड के नाम से लोग ऐसे जाने कि मतलब मधुबन अच्छा, इसमें तो कुछ मतलब गलत हो ही नहीं सकता, और इससे बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में बदलाव आए हैं। तो मधुबन एक ब्रांड बने, वही मेरा एक सपना है। जी जी सर, बहुत अच्छी तरीके से समझाए कि भाई इट्स नॉट मी इट्स मधुबन ब्रांड। जी। यस। और जो आपने एक्सप्लेन किया द अबाउट द मिल्क प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क हर महिला के लिए जी। जो अभी माँ बने हैं, तो हुँ, उनके खुराक के लिए और उनका हेल्थ के लिए, बच्चे के लिए, इट्स रियली जी, वेरी नाइस। जी। थैंक यू वेरी अ, मच, तो यूनिक बीच में कॉन्सेप्ट है मैं सर। एक इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने आई थिंक 3 साल पहले 2-3 साल पहले शायद कोरोना से पहले डाला होगा। मेरे सोशल मीडिया में वो सारा मैंने गुजराती में लिखा हुआ है। जिस बात मैं मधुबन की कर रहा हूँ ना, मैं अहमदाबाद से आनंद बस में आ रहा था, तो जनरली बात कर रहे थे, मैंने बोला उनको जो भी इंसान मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने पूछा कहाँ काम कर रहा है? तो मैंने बोला मधुबन में काम कर रहा हूँ। तो बोला अच्छा मधुबन फाउंडेशन? मैंने बोला हाँ, मधुबन फाउंडेशन में। अच्छा, वो उनका आपका जो प्रेसिडेंट है वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो बहुत सारे उसने मेरे साथ बातें की। जनरली मैं उसको कभी मैंने मिला नहीं था मेरी लाइफ में, मैंने कभी उसको देखा नहीं था और मैं कभी उनको जानता नहीं था। तो मुझे और थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो मैंने सब कुछ उसको पूछा, अच्छा ऑफ़िस का एड्रेस सब कुछ सही बताया उसने। तो बोले क्या-क्या काम करते हो? आप उनको मिलते हो? तो बोले मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो आपका जो प्रेसिडेंट है विक्रम जोगरा ना, और मैं वो बहुत बार मिलता है। तो मैंने बोला मैंने कभी आपको नहीं देखा, मैं मतलब जनरली दिन में बैठता हूँ। तो बोला नहीं-नहीं, हम रात को वो आते हैं ना जब ऑफ़िस नौकरी छोड़ने के बाद, तब हम रात को बैठते हैं, बहुत बार मिला हूँ और ये सारा काम करते हैं। मैंने बहुत बार वहाँ पे ये डोनेशन किया, ये किया। अच्छा, डोनेशन वाला आया तो थोड़ा मुझे मतलब वो लगा कि मेरी लाइफ़ में मैंने कभी देखा नहीं है। डोनेशन का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, तो इसने कहाँ दिया होगा? पर उसकी बातें ऐसी थी जिसमें पूरा ज़िक्र वो मधुबन का ही कर रहा था। ठीक है? हाँ, पर्सनली वो मुझे नहीं जानता था, पर मधुबन के बारे में वो जानता था। तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि चलो लोग मधुबन को तो जानते हैं, भले मुझे नहीं जानते, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारी बातें की, मतलब 50 किलोमीटर तक सफ़र था, और लास्ट में उतरने के टाइम मैंने उसको एक कार्ड दिया, विज़िटिंग कार्ड मेरा। मैंने बोला ये विज़िटिंग कार्ड है, ये मधुबन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट का है। तो बोले हाँ, ये कार्ड तो मेरे पास है। मैंने बोला भाई कार्ड है, फिर मैंने आईडी निकाला, मैंने बोला ये मधुबन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट मैं खुद हूँ भाई। तो उसको शौक लगा, उसके टाइम उतरने के टाइम बात हुआ, तो बोला सॉरी मुझे पता नहीं था। हाँ, मैं जानता था तो मुझे लगा आप वहाँ जॉब करते हो, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मतलब एक साइड मुझे इतना सारा प्राउड फील हुआ कि चलो लोग मधुबन को तो जानते हैं, मुझे नहीं जानते उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर नाम से तो कुछ चल रहा है। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि चलो एक ब्रांड तो होना ही चाहिए। जी जी सर, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। मुझे भी अच्छा लगा कि भाई आप भी खामोश थे थोड़े समय के लिए, उसके बाद हुँ, में जो सब सच्चाई बाहर आया, तो जी, लास्ट मोमेंट जब सेपरेट हो रहे थे, तो तब आपने आईडी दिखाई और आपने कहा कि आई एम द प्रेसिडेंट एंड फाउंडर। वेरी नाइस, एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट ब्यूटीफुल थैंक यू वर्क मैम, दैट यू डन। थैंक यू। यस यस सर। ये सर, आप खुद में क्या अच्छा लगता खुद में? कौन सा क्वालिटी आप, कौन सा गुण आपको अच्छा लगता खुद में, कि मैं डॉक्टर विक्रम जोगरना, मुझे ये बात अच्छी लगती है मुझ में?
कौन सी बात है सर? मेरे को एक मैं थोड़ा बताऊँ तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जनरली लोग देख के मुझे बोलता है आप बहुत इनोसेंट हो, गुस्सा नहीं। मैंने बोला नहीं, आप मेरे को पास्ट मेरा देख सकते हो, मेरे को कहीं पॉइंट पे गुस्सा आ जाता है। तो उस हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे मतलब कहीं ऐसा पॉइंट में सडनली कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, रिएक्ट तो मैंने बहुत मतलब 99% मैंने नहीं किया होगा। पर हाँ, कुछ बुरी ऐसी बात होती है, कुछ गलत होता है तो थोड़ा लगता है। दिखावे के लिए जो लोग दिखा रहे हैं, मैं सच जानता हूँ, फिर भी दिखा रहे हैं लोग, तब थोड़ा मतलब वो क्वालिटी है मेरे में कि मुझे गुस्सा आता है। तो वो वैसे तो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए मेरे में, उसको थोड़ा सँभलना है, समझना है और मतलब थोड़ा प्यार से उसको आउटपुट दिला के कुछ चेंज कर पाएँ और उस हिसाब से देखें, तो उस हिसाब से मैं मेरे में सोचता हूँ ऐसा ही कोई क्वालिटी होना चाहिए कि मैं लोगों को सुन पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अभी तो सुन रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, पर ये एक क्वालिटी है कि जिसमें मैं सोचूँ कि लोग मुझे कुछ भी बातें बताने आ रहे हैं, तो वो फैक्ट बताएँ, बिना हिचकिचाहट के। कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए, अच्छा उसको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इससे कुछ क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये प वो कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आओ, आप फैक्ट बताओ कि यही था और यही रीज़न था, तो उससे मुझे कुछ वो नहीं होगा। पर फैक्ट बताएँ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत वो मिर्च मसाला डाल के फैक्ट पता हो फिर भी डालते, तो थोड़ा बहुत वो खराब लगता है। तो फैक्ट वाला थोड़ा हो जाए, तो वो क्वालिटी आ जाए एक मेरे में, तो वो अच्छा है मेरे लिए। जी सर, जी सर। होप थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एलैबोरेट नहीं कर पाया होगा, तो कुछ आपको लगा तो वापस थोड़ा आप कुछ उसमें पूछ सकते हैं। जी जी सर। जी सर, आपको ऐसा कोई अच्छा सा सिनेमा मूवी, ऐसा कोई हुँ। अच्छा मूवी है जो समाज के लिए एक अच्छा सा मैसेज है उस मूवी में, आप बताना चाहेंगे, उसका नाम शेयर करना चाहेंगे? मूवी तो मैं जनरली बहुत प्रेफ़र कम करता हूँ, पर ज़्यादातर अभी तो मैं थोड़ा बहुत वो साउथ के मूवी देखता हूँ, जिसके अंदर होता है ऐसे पॉइंट्स जिसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मैसेज मिलते हैं। पर मैं कोई भी मूवी देखने जाऊँ तो मेरा एक ही विज़न है, फ्रेंड के साथ कभी होता है कि चलो जाना है, तो हम फ्रेंड के साथ उनके दिल रखने के लिए कभी चले जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उसमें से एक पॉइंट तो ऐसा हो कि मेरी लाइफ़ में आए। अच्छा, मैं दिन में 10 लोगों को मिलता हूँ, तो मैं ऐसा सोचूँ कि 10 ऐसे वर्ड्स या 10 ऐसे पॉइंट मुझे लगने चाहिए कि मैं कुछ सीखा हूँ। मैं रोज़ कुछ नया-नया सीखता हूँ, रोज़ कुछ नया-नया दिखता है मुझे। तो मैं कोई भी मतलब आप बोलो कि इस बार उसको रेटिंग में 5 में से 0 मिला है, ऐसी कोई भी मूवी आ गई और वो भी मैंने देख ली, तो उसमें से एक तो पॉइंट मैं ऐसा निकाल ही लेता हूँ कि जिसमें मुझे कुछ अच्छा लगे। तो जनरली मैं मूवी देखने के लिए जाता हूँ, तो ऐसे सोच के जाता हूँ कि जिसने भी मूवी बनाया है, जो भी डायरेक्टर्स थे, ऑथर मतलब फ़िल्म उसके एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थे, उन्होंने कुछ तो उसमें सोच के काम किया होगा, कुछ तो मेहनत की होगी, उसका बैकअप भी कुछ और होगा। हो सकता है वो पब्लिक को एंटरटेन ना कर पाए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सबको खुश कर पाओ। अच्छा वही मूवी देखते हो, तो वही मूवी में आपको ये लगता है अच्छा इसमें तो कुछ इसका एक्टर का कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा है ख़ास है, तो ऐसा है, वैसा है। वही मूवी 5 साल के बाद कोई नया मूवी अच्छा आ गया तो बोले नहीं यही भगवान है हमारे लिए, वो जी होता है। जी जी। तो वो हमारे लिए एज़ इट इज़ ही रहना चाहिए। मैं लाइफ़ में अभी मतलब थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ तो एक एक ही मेरी लाइफ़ में एक ही इंसान है, मैं विराट कोहली को थोड़ा बहुत मानता हूँ। मैं लाइफ़ में क्रिकेट क्रिकेट कभी नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ तो एक ही बैटिंग देखता हूँ या भारत-पाकिस्तान का कोई मैच है तो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है। या फिर आईपीएल में अभी देखता हूँ तो विराट कोहली वाला मैच होता है तो देखता हूँ और वो जब खेलता है तो देखता हूँ। वो आउट हो जाता है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उनसे एक ही मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा और उनका मतलब वो राशि भी एक ही है, वृषभ राशि आ रहा है। थोड़ा मतलब वो नवंबर में उसका बॉर्न हुआ है, मेरा भी नवंबर में है। उतना कुछ ज़्यादा ऐज में भी फ़र्क नहीं है। तो उनसे थोड़ा बहुत लगता है। तो मूवी का तो मैं इतना कुछ ख़ास नहीं कहूँगा। पर हाँ, एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी मूवी कोई भी कैसी भी क्यों ना बनाए, उसमें कुछ तो ऐसा मैसेज होता है जिसमें से आप कुछ अच्छा कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात बताऊँगा कि कोई भी मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ, चाहे इंडिया में हो, चाहे गुजरात में हो या चाहे वर्ल्ड में हो। टेररिस्ट तो नहीं, थोड़ा वो थोड़ा मतलब डेंजर हो जाएगा। पर चलो हम मान लेते हैं कि आपके साथ कोई पॉलिटिशियन है और गवर्नमेंट यहाँ चल रही, सरकार चल रही है और कोई पॉलिटिशियन है, उसके साथ कुछ ऊँच-नीच हो गए या कुछ उसने 6 महीने बाद कुछ प्लान किया है। तो 6 महीने में उसने कुछ तो दिमाग लगाया होगा, 6 महीने कितना बड़ा मैनेजमेंट हुआ होगा, कितना प्लानिंग किया होगा, कितने उतने पापड़ बेले होंगे तब जाके ये हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की, तो अभी जो 370 का कलम हटा दिया, तो ऐसे ही उठ के उन लोगों ने तो नहीं बोला होगा ना कि कल से 370 नहीं है, ऐसे नहीं बोला होगा। उसके पीछे जो बैकअप प्लान है उसकी आप इज़्ज़त करो। ऐसा नहीं है कि आज आके बोल दिया, उसके पीछे उन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया होगा। मुझे तो लगता है 6-12 महीने तक उन्होंने ऐसे-ऐसे अथॉरिटी के पास रिसर्च करवाएगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा, कैसे उसको मैनेज करना है, तो ये सारे पॉइंट्स भी हैं। तो वैसे भी हर एक मूवी में ऐसा होता है, तो मूवी का तो इतना कुछ ख़ास नहीं है, पर हाँ, मैं ज़्यादातर साउथ मूवी देखता हूँ, तो उसमें यही है कुछ ना कुछ पॉइंट तो मैं ढूँढ ही लेता हूँ।
और मैं बच्चों के साथ जब भी बैठता हूँ तो ऐसे लाइव एग्जांपल ही दे देता हूँ। तो वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस ही है कि किसी भी ने मेहनत किया तो बहुत अच्छा मेहनत किया। जी भाई साहब, आपने कहा आपका बर्थडे है, आपका जन्मदिन नवंबर में है, जी। तो कौन सा डेट बता सकते हैं आप? 21 नवंबर है मेरा। 21 नवंबर। तो आपका जी। और विराट कोहली जी का जन्मदिन नव एक ही। नवंबर में है, मंथ है ये ही है हमारा। जी। डेट तो सेम नहीं है, पर और नवंबर मंथ है। नवंबर मंथ, वो राशि जो है सेम हाँ, रहती है ना? सेम राशि भी सेम है, वी से नाम है, विक्रम है, विराट है। तो ये। थोड़ा उनसे मतलब 0.01% भी कुछ सीख पाया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि समय कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जी बहुत टाइम उन्होंने झेला, आज भी वो नंबर 1 बल्लेबाज है ही। जी तो बीच में उनको भी बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो मैं सोचता हूँ कि उनको आ सकते तो हम कौन है भाई। जी जी उनको आप सोचो कि मतलब 140 करोड़ की जनता के अंदर किसी 11 खिलाड़ी को सिलेक्ट करना है, उसमें से भी आपको नंबर 1 रहना है 140 करोड़ में। तो वो नंबर 1 रहने के लिए जो मेहनत कर रहा है ना, वो उसको हम कभी मतलब उसको सैल्यूट है, वो हम सोच भी नहीं सकते। हम 11 लोग यहाँ सिलेक्ट करने तो उसमें से भी सोच नहीं सकते, तो वो तो 140 करोड़ में से 11 सिलेक्ट करना है और उसमें से भी नंबर 1 रहना है, तो उसकी कंपैरिजन तो हम कभी कर भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते। तो उसकी जो मेहनत है उसको आप सलाम करो। जी जी जी। अभी आपने कहा क्रिकेट, तो ऐसा एक सवाल पूछेंगे कि आप कौन सा स्पोर्ट्स और गेम्स में हिस्सा लेते थे या अभी भी कर रहे हो आप? एनी ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स आप? स्पोर्ट्स एंड गेम की बात करें तो क्रिकेट में बचपन में तो वो हर जगह वो माहौल था, गिल्ली डंडा लेके वो खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। उसके साथ वो लकड़े का बैट खुद बनाना, वहाँ पे स्टंप लगाना, और गांव में तो ये सब माहौल होता ही था, तो उस टाइम पे क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। पर मतलब स्पोर्ट्स के हिसाब से नहीं, एक मतलब खेलने जाना है और खेलते थे वो चीज है। जैसे समझ में थोड़ा बहुत आया स्टडी के इम्पोर्टेंस और ये जैसे ग्रेजुएशन के बाद तो निकल के उसके बाद तो कभी कुछ खेल में नहीं रहा। हाँ, एक चीज है दिमाग में कि कोई भी खेल ऐसा खेल रहे हैं लोग या किसी स्पोर्ट्स में बच्चों को जो जरूरत है, तो उस बच्चों के लिए हम अभी काम करें। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं होबाड़ो। होबाड़ो, इट इज अ नेगेटिव वर्ड्स। हाँ, मैं मेरा थोड़ा ये दिमाग थोड़ा है ऐसा कि मैं नेगेटिव वर्ड्स के प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की सोच रखता हूँ। तो होबाड़ो गुजराती वर्ड्स है, होबाड़ो मतलब नेगेटिव वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे अभी संसद भवन में कुछ प्रोग्राम हो रहा है और 100 लोग आ गए और कुछ किया, धरना बरना किया, तो वो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में मतलब इन लोगों के द्वारा ये हल्ला बोल करने में, तो वो एक वन काइंड ऑफ गुजराती वर्ड होबाड़ो। तो मैंने वो वर्ड्स दिया है होबाड़ो यूनिक स्कूल ऑफ चिल्ड्रन। यूनिक स्कूल ऑफ चिल्ड्रन का मतलब ये होता है कि उस बच्चे वहां पे आते हैं, जैसे ही वो मेरे में कुछ टैलेंट नहीं है, ठीक है, पर हमें कुछ आवाज उठानी है, तो हम जाके जब तक बात नहीं रखेंगे तब तक सरकार नहीं सुनती है। कुछ आंदोलन हुआ है, कुछ भी हुआ, तो उसके बाद कुछ तो रिजल्ट मिलता है ना। जैसे फार्मर आंदोलन हुआ, तो उसके बाद फार्मर की 1% बात तो रखी जाती है कि सच में सरकार को भी पता होता है कि चलो कहीं ना कहीं ये लोग भी थोड़े बहुत तो कुछ होगा पॉइंट। तो वो पॉइंट में बदलाव कब आएगा, जब फार्मर ने जाके वहां पे बताया तब। तो हम भी ये यूनिक स्कूल ऑफ चिल्ड्रन का टाइटल देके ऐसा सोचा कि बच्चे हमारे पास आए, उस स्कूल में हमें बच्चे आके बताया कि मेरे में ये टैलेंट है। मतलब किसी में कोई म्यूजिक का टैलेंट है, किसी को कोई मतलब सिंगिंग का टैलेंट है, किसी को कोई स्पोर्ट में मतलब कोई भी ऐसा रमत में इंटरेस्ट है, तो उसमें वो काम करना चाहते हैं, उसमें वो आगे जाना चाहते हैं, तो वो आके हमें बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चों को सैटरडे संडे वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। जितने भी बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं वो हमारे वॉलेंटियर्स देते हैं। अच्छा, वही बच्चे फॉर एग्जांपल हम बात करें म्यूजिक की, और सिंगिंग में बहुत अच्छा उसको इंटरेस्ट है और 1 महीने हमने ट्रेनिंग दिया, तो उसके बाद वो बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सिंगिंग में आगे जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, किसी को सिंगर को ढूंढ लेते हैं और उसको जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये बच्चों को 1 साल आपको ट्रेनिंग देना है, आप जब भी बोलोगे हम इसको वहां से वहां पहुंचा देंगे। तो क्या होगा, एक आउटपुट मिलेगा। तो हम वैसा ही सोचते हैं कि जिस बच्चे को कुछ स्पोर्ट में जाने के इंटरेस्ट है, कोई भी उसमें खेल खेलना हो, उसको कोई भी खेल में जाने की इच्छा हो, क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, कबड्डी हो, कुछ भी हो, पर जब उसको जाना होता है तब सच में उसके पास कुछ नहीं होता है। हाँ, वो फेमस हो जाए उसके बाद तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो जाने के टाइम पे वो बच्चा है वो आए आए हमारे पास, बिना खिसखिसाहट के, बिना हिचकिचाहट के हमारे पास आए, कुछ बात रखे। हमारे पास भी कुछ नहीं है, हम भी जीरो बजट में ही एनजीओ चला रहे हैं आज भी, पर हम ट्राई ये कर सकते हैं एज ए मीडिएटर कि किसी लोगों के हिसाब से हम किसी को मदद कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी के सामने जाके बात रखेंगे एज ए मीडिएटर, इनको ये जरूरत आप पहुंचा दो। तो कोई भी स्पोर्ट हो, स्पोर्ट को अभी तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ कोई भी स्पोर्ट में कुछ मतलब जुनून आ जाता है जल्दी, कि कोई फॉर एग्जांपल इंडिया का टीम खेल रहा है तो कैसा वो जुनून मतलब हमारा है। तो वी फीलिंग जो है ना, वो कहीं पे कम नहीं होनी चाहिए, कोई भी टीम ले लो। जैसे विराट कोहली का टीम प्ले कर रहा है तो मतलब ये हमारा टीम है। इंडिया मतलब किसी और कंट्री के सामने खेल रहे हैं तो वो हमारा है। जैसे नहीं होता है
कोई डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वैसे मैं गुजरात से हूँ फॉर एग्जाम्पल, और गुजरात का टीम खेल रहा है तो तब क्या होता है, तब लोग कहते हैं अच्छा हमारा टीम खेल रहा है, राजस्थान के सामने, महाराष्ट्र के सामने कहीं खेल रहा है, तो ऐसा होता है, तो वी फीलिंग है। वही टीम राजस्थान का 2 बंदे हो गए, गुजरात के वो सारे हो गए, जो कंट्री के सामने खेलते तब क्या होता है, मतलब अच्छा ये तो हमारे इंडिया के, तो वो हमारी टीम है, तो वो वी फीलिंग है वो कि हम कम नहीं होनी चाहिए स्पोर्ट के लिए तो। जी जी भाई साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। हमें ये अच्छा लगा कि भाई बच्चों का इच्छा मनोकामना पूरा करना। यस सर, यस सर। इस दुनिया में किस तरह के बदलाव लाना चाहेंगे सर आप? इस दुनिया में बदलाव तो वैसे देखा जाए तो कोई ऐसा बदलाव तो कोई ला नहीं सकता है, पर हाँ, हम थोड़ा प्रयत्न कर सकते हैं। हम कुछ मतलब चिंगारी जैसे नहीं, आग लगाने के लिए वो चिंगारी लगा सकते हैं किसी के दिल में, पर चिंगारी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी के दिल में हमें आग नहीं लगानी है, किसी के लाइफ में आग नहीं लगानी है। हाँ, किसी के दिल में हमें ऐसी आग लगाएँ कि वो कुछ करने के लिए काबिल बन जाए। तो मैं अभी फिज़िकली ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टलिस्ट की कमी होती है कई बार। तो मैं विज़न ये है कि ऐसा कुछ बदलाव लाए कि किसी को किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना हो। जैसे नहीं होता कई बार कि हेल्प करने के लिए आपको कुछ बोलना है तो सीधा आप डायल करो, आपका कुछ भी कॉन्फिडेंशियल होता है, आपका कुछ भी मतलब ज़ाहिर नहीं होता कि इसी बंदे ने कॉल किया था, इसने ये किया था, वो नहीं होना चाहिए। बिना हिचकिचाहट के कोई काम कर पाए, वैसा एक माहौल होना चाहिए सोसाइटी में कि किसी को मदद की ज़रूरत है और ऐसा मतलब आए कि मुझे मदद की ज़रूरत है, वो बोलने में उसको 1% भी शर्म नहीं आनी चाहिए। जब भी ज़रूरत है वो आके बीच बिना हिचकिचाहट के बोल दे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये हेल्प की ज़रूरत है, और वो कर पाए हम, तभी हम हमारी लाइफ़ को ऐसा बनाएँगे चलो अच्छा, हम इतने तो भगवान ने हमें काबिल बनाया कि हम किसी के लिए 0.01% काम में आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ बदलाव करने की ट्राई कर रहे हैं कि मतलब 0.01% दुनिया की बात करें तो उतना तो बहुत है। इतना भी कुछ हो गया कि जिसमें कुछ एम्पावरमेंट आ जाए, कुछ हमारी वजह से कुछ लोगों का भला हो जाए। ख़ैर वैसे किसी का कोई भला नहीं करता है। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भला करने की जब हम बात करें ना, तो भला तो हम पहले करने की बात करें ही नहीं। मैं किसी का भला करने नहीं, मैं मेरे स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को भी चाहिए ना, मेरा मधुवन है, मेरा एनजीओ है, मेरा नाम आएगा। वो तो मेरे को एक ब्रांड चाहिए ना, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं किसी का भला करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो मैं मेरे स्वार्थ के लिए जा रहा हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ, किसी का उसमें पॉज़िटिव हो रहा है, वो मेरा विज़न होना चाहिए। तो बदलाव तो 0.01% के हिसाब से सोचे तो ये आएगा कि बस एम्पावरमेंट थोड़ा ला दें और किसी की लाइफ़ हमारी वज़ह से खुश हो जाए, और उसकी लाइफ़ में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कुछ कमी है। तो ये बदलाव लाने की ट्राई करेंगे हम। जी सर, जी सर। आप बड़े नेक इंसान हैं, सच्चे सच्चे दिल से आप शेयर कर रहे हैं आप कि भाई जी। मेरा भी स्वार्थ है वहां पर कि भाई मुझे भी अच्छा लगता है, मैं किसी का मदद करूं, मेरा हाँ, फाउंडेशन आगे बढ़े। मुझे आई वांट टू बी अ चेंज मेकर, आई वांट टू जी, ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। तो जी। दिस इज वेरी नाइस। और चेंज की बीच में कहूँगा कि जो चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे को भी सबके जैसे ऐसे नौकरी करना है, तो मेरे को भी नौकरी मिल जाएँगी, मैं भी कुछ काम कर लूँगा, मैं भी कुछ बिज़नेस कर लूँगा, तो वो मेरा स्वार्थ है तब मैं करूँगा। इसमें भी मेरा स्वार्थ ही है ना कि मेरे को कुछ करना है तब मैंने स्टार्ट किया है, तो वो मैं किसी और के ऊपर क्यों बोल सकता हूँ, नहीं मैंने लोगों के लिए ये स्टार्ट किया। लोगों के लिए मैंने नहीं किया, पहले तो मैंने खुद के मेरे लिए स्टार्ट किया, फिर मैं चाहूँगा कि उससे कुछ लोगों का भला हो। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं पहले तो मेरे लिए कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे लोग आके नहीं इन्विटेशन देने नहीं आए थे कि भाई हमें ज़रूरत है और आप ये कोई एनजीओ स्टार्ट करो, उसके हिसाब से हमें कुछ मदद मिलेगी। मुझे कोई इन्विटेशन देने नहीं आया था। तो ये मेरा विज़न है। जी जी सर, आप बड़े सच्चे दिल के हैं, दैट मच आई कैन हुँ, अंडरस्टैंड, यू आर वेरी हॉनेस्ट। मैम, थैंक यू मैम, थैंक And यू। yes, yes, sir, very honest. Dear friends, all of us should be honest like this to understand who we really are and what we want to give back to the society, what we want to get back from the society as well. Dear sir, इस सफर पर आपके कितने दोस्त आपके साथ खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे? उनके नाम बता सकते हैं तो बता दीजिए हमें। इस सफ़र में मैं आपको बात करूँ तो जब मैंने एनजीओ की स्थापना की, इसमें मेरे जितने भी मेरे सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, वो दोस्त में से किसी भी दोस्त ऐसा नहीं है कि जिसको एनजीओ में कुछ मतलब इतना कुछ पता हो और सोसाइटी। मैं जब भी कॉल करता हूँ, मुझे ये चाहिए भाई, मुझे इतना वो है, ये हो रहा है, तो मतलब इंस्टेंट होते कभी कोई पूछता नहीं है मुझे। तो ये मेरे लिए एक मतलब बहुत फ़क्र की बात है। वैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं इसमें से 2-4 हैं, सुरेश है, राहुल है, ठीक है? ये लोग काम कर रहे हैं, विक्रम है, अमरूद है, ये सारे लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग कभी मुझे पूछते नहीं, अच्छा इसमें क्या हो रहा है? मैं कभी बुलाता हूँ ना, तो ये करना है, एनजीओ में ऐसा चल रहा है। अच्छा, जब फंडिंग की मैं आपको बात करूँ, सबसे बड़ा मैंने बोला एनजीओ का हार्ट फंडिंग है। अच्छा, हमारे पास फंडिंग नहीं है। हम 0 बजे पे मैक्सिमम काम करते हैं।
तो फंडिंग का इश्यू तो रहता है, पर थोड़ा बहुत तो हमें चाहिए कि जिसमें थोड़ा बहुत तो कुछ मैनेज हो पाए, कुछ करना है, गवर्नमेंट के मतलब ये ऑडिट करवाना, रिटर्न करवाना, ऑफिस का थोड़ा खर्चा निकालना है। तो मतलब रात में 12 बजे कुछ मतलब 1-2 ईएमआई चल रहे थे मेरे, तो मुझे ईएमआई तो रात को 12 बजे के बाद कट रहा है। फॉर एग्जांपल 15 तारीख को मेरा ईएमआई डेट आ गया, 14 तारीख को रात को 11 बजे सोच रहा हूँ पैसे नहीं है, पैसे आए नहीं, अभी तक नहीं हुआ, क्या हुआ? 12:30 11 बजे मैं कॉल करता हूँ, कहाँ है? बोले हाँ, बोला 14,500 रुपये चाहिए। तो बोला हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ। मतलब क्यों चाहिए, क्या करना है, आज तक कभी नहीं पूछा। अच्छा, जितने भी दोस्त ने हेल्प किया उसमें किसी ने आज तक ऐसा नहीं पूछा मतलब कब वापस मिलेगा, कभी नहीं पूछा है। अच्छा, उनको भी ज़रूरत होती है, उनको भी प्रॉब्लम होते हैं, मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता है। पर हाँ, उनको इतना भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं जो भी कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, कुछ मतलब देने के लिए कर रहा हूँ। तो मतलब वो माहौल ही ऐसा हो गया है कि मतलब आँख बंद करके मेरे ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, मतलब कम सैलरी में भी जॉब कर रहे हैं लोग। सारे ऐसे भी लोग हैं जिसको मतलब अपना खुद का घर और खर्चा निकल रहा है। फिर भी घर पे कुछ कदाच मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उनके वाइफ ने बोला होगा या पेरेंट्स ने बोला होगा इतना पैसे ज़रूरत है, तो बोलेंगे एक टाइम कि हाँ, मतलब मैं 1 वीक लगा दूँगा, 1 वीक के बाद मैं भेजता हूँ। मेरे को कभी आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। जब भी बुलाया मतलब ऑनेस्टली वो लोग साथ में ही है, और जब भी बुलाया, जब भी ज़रूरत पड़ी, मतलब एक कॉल पे आ गए सारे लोग। जी। तो ये एक मतलब बैकअप है कि कभी भी मतलब ऐसा हुआ कि सडनली सोच में पड़ गए, कुछ हो नहीं रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तब ये मतलब एक बैकबोन है हमारा, जो कभी दिखते नहीं है लाइफ में, और यही लोग होते हैं जो कभी नहीं दिखते हैं। पर हाँ, ज़रूरत होती है ना तो वही लोग आपको सबसे पहले दिमाग में आते हैं। हाँ, तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि लाइफ में कोई इंसान मुझे कभी कॉल ना करे तो चलेगा। मेरा कोई भी फ्रेंड ऐसा हो कि जिसको 1 साल मेरे को कॉल नहीं करे चलेगा। पर जब को उसको बहुत अर्जेंटली ज़रूरत है तो सबसे पहले उसके दिमाग में मेरा नाम आना चाहिए। और वो बिना किसी मुझे कॉल करे, मुझे अभी ये है और ये है, और ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में। ऐसे 2-4 इंसिडेंट हुए कि मतलब मेरा 6-6 महीने तक फ्रेंड से बात नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं। पर हाँ, उनको लगा है अच्छा, ऐसे भी फ्रेंड्स हैं लाइफ में उसको कभी भी कुछ ऐसा डिसीज़न लेना है, कुछ ज़रूरत है, तो लास्ट में पूछते हैं अच्छा मैंने ये किया, इसमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे ऊपर इतना तो भरोसा करते हैं। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा प्राउड मोमेंट है, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ फ्रेंड्स में। जी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, हुँ। थैंक यू वेरी मच। डियर सर, आपको किसी चीज से डर लगती है? डर डर लगता है ऐसा? अगर है डर, किस बात का डर? अ, अभी के लिए जो डर लगता है, जो समाज का जो माहौल है, उस हिसाब से ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्कूल के लिए हम काम कर रहे हैं ना, तो किसी स्पॉन्सर ने आके मुझे बोला कि मुझे 5,000 का ये देना है ये स्कूल में। बोला ठीक है, तो हम कोई स्कूल में बात कर लेते हैं। अच्छा, माहौल ये होता है कि हमें वो काम किया तो वो फ़ोटो सोशल मीडिया पे हम रखते हैं, ठीक है? वो रखने के बाद हम लिखते भी ये स्कूल में इन्होंने स्पॉन्सर, हम नाम के साथ डालते हैं साथ। दूसरे दिन किसी और की एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे। सर आप उनकी स्कूल में कर रहे हो, आप हमारे स्कूल में क्यों नहीं आते? सर हमें भी ये चाहिए। तो वो एक डर मन में रहता है अभी तो, बहुत ज़्यादा डर है ये, सच में बताना नहीं चाहिए ये तो। पर ये एक डर है कि हम किसी की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर सकते। और ये हम जब लिखते हो और दिखाते हैं ना तब लोगों को ये लग रहा है कि अच्छा इन लोग इनके लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये मतलब एक डर है कि हो सकता है कि कहीं सच में किसी को ऐसी ज़रूरत हो और उस टाइम पे हमारे पास कुछ ना हो और हेल्प ना कर पाएँ, और उसकी वजह से किसी को लाइफ में इतना बड़ा नुकसान हो जाए जो लाइफ में हम कभी भरपाई ना कर पाएँ। नॉट इन काइंड ऑफ मनी ओनली, और कभी किसी को ऐसी ज़रूरत हुई, काउंसलिंग की ज़रूरत, और उस टाइम पे हम ना मदद कर पाएँ और दूसरे दिन हमें पता चला कि अच्छा 5 मिनट इनसे बात हो गया, 5 मिनट मिल लिए होते, इनका प्रॉब्लम होता, हम खड़े रह गए होते, तो लाइफ में ये डिसीज़न ये ना लेता। तो वो एक डर है कि लाइफ में कभी ऐसा मौका भगवान ना दे हमें कि किसी को हम हेल्प करने के लिए इच्छा भी रख रहे हो और इसे हेल्प ना कर पाएँ, जिसकी वजह से उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए। तो वो लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात का डर है लाइफ में। यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है कि भाई कितने हद तक आप आगे जाना चाहेंगे हेल्प करने के लिए। एंड जी। अगर नहीं कर पाए तो भी आपको एक डर है कि भाई नहीं कर पाए, उनका नुकसान ना जी। हो जाए। तो ये नहीं बहुत नहीं अच्छा। नहीं कर पाए उसमें क्या है, चलो इन काइंड ऑफ मनी उसको कुछ ज़रूरत है 5,000 10,000 वो नहीं कर पाए तो एक टाइम के लिए चला लेंगे। पर लाइफ में जब ऐसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जब उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसा तो नहीं चाहिए किसी को, पर 5 मिनट के लिए आप खड़े भी रहेंगे ना तो उसका डिसीज़न चेंज हो सकता है। जी जी वैसे कोई हेल्प करनी हो और भगवान करे ऐसी हेल्प में हमें ऐसा कोई पॉइंट ना दे कि जिसमें हम हेल्प ना कर पाए और कोई डिसीज़न कोई ले पाए। तो जी वो हेल्प तो होनी चाहिए लाइफ में। जी सर, आपके सोच विचार बहुत नेक है सर। लॉट ऑफ हुँ, विजडम। यस सर, थैंक यू मैम, वेरी थैंक यू। नाइस। डियर सर, एक अच्छा सा मुहावरा या कोटेशन आपका फेवरेट?
इन काइंड ऑफ पॉजिटिव वे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, नेगेटिव वे लोग ले सकते हैं। मेरा एक ही लाइफ में मैं कोट अभी दिमाग में सोच के था, बहुत टाइम ऐसा होता था, कई बार ऐसा लग रहा है नहीं कुछ मैनेज हो पा रहा है, ना एनजीओ मैनेज हो पा रहा है, इंटर्नशिप में बच्चे ना उसको मैं टाइम पे जवाब दे पा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब मेरा जॉब है उस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत वो हेडेक तो कहीं जब जॉब आप करें तो होता ही है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता, तो एक टाइम पे ऐसा सोच रहा हूँ, भाई हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, हमें सोचना ही नहीं, हम हाथी के हिसाब से चलते रहना है। ये थोड़ा दिमाग में डाल देता हूँ, ये थोड़ा नेगेटिव है, पर सामने कोई भी आ जाए, पर आपको नहीं सुनना है तो कुछ तो आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा ना। तो ऐसा दिमाग में बिठा लेने का, भाई हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, किसी को जो बोलना है बोले, हमें हमारा काम करना है। हाथी ऐसा सोचे पीछे से भौंक रहे, मैं वापस आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो बीच में एक टाइम ऐसा आया था, मैं मतलब स्टेटस रखते हैं आजकल लोग व्हाट्सएप पे और उस पे, तो मैं ये व्हाट्सएप पे स्टेटस बहुत लायन के बहुत स्टेटस रखता हूँ, या फिर कृष्ण भगवान के कुछ रखता हूँ, ये दो मेरे फेवरेट है। तो लायन के स्टेटस ऐसे होते हैं तो लोग थोड़ा जलते हैं कुछ ऐसे, हाँ, पर मैं उसमें पॉजिटिव वे पे ही रखता हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं, अच्छा ऐसा सोच रहे होंगे, हाथी चले बाजार कुत्ते में, ऐसी सोच थोड़ी होती है। अब लोग सोचेंगे, सोचना है तो सोचेंगे, अच्छा कोई जब जरूरत है तब हेल्प करने नहीं आएंगे आपको, तो उनका सोच है, हम हमारा सोच के हिसाब से आगे चलते रहेंगे। तो थोड़ा बहुत ये चलता रहता है, लाइन के स्टेटस मुक्ता रखता रहता हूँ मैं, उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। जी सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। और शेयर करने के बाद में उसमें एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन भी आपने दे दी, वो भी बहुत बढ़िया है। जी, थैंक यू। थैंक यू। ये सर, आज तक आपने इतना सब कुछ हासिल कर चुके हैं, तो सबसे बढ़िया हासिल, सबसे बढ़िया अचीवमेंट, प्राउड अचीवमेंट, वाह मैंने ये काम कंप्लीट किया, वो कौन सी काम है सर? दो वे है उसमें, पर्सनल और पर्सनल और प्रोफेशनल दो वे हैं जिसके हिसाब से मैं सोचूंगा। तो एक तो आपके पीछे आपकी फैमिली और पेरेंट्स और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है, तो उस हिसाब से आप सोचे तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट ये है कि मेरी फैमिली ने जो मुझे पढ़ाया है, मेरे पीछे जो खर्चा किया है, फादर फार्मर है, उन्होंने जो मेरे पीछे किया है, पूरे गांव में भी लोग बोलते हैं भाई आपने इतना पढ़ाया, ये करा वो किया। पेरेंट्स ने आज तक ऐसा कभी नहीं बोला क्या कर रहा है क्या पढ़ रहा है, आज तक पूछा नहीं है। तो मेरे लिए उनके हिसाब से मैं फैमिली के लिए सोचूं तो मेरे लिए कि मैंने एजुकेशन में मैंने जो डिग्री कर मतलब हासिल करना चाहता था वो कर लिया, और वो है मेरा पीएचडी का डॉक्टरेट डिग्री, और वो मैंने मेरे फील्ड में मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से सोशल वर्क में किया है। तो पूछते हैं कि अच्छा क्या है डॉक्टर बन गया, हाँ, तो बोले हाँ, तो कौन सा डॉक्टर मतलब कहाँ है, तो बोले वो वाले डॉक्टर नहीं, पढ़ाई वाले डॉक्टर बन गए। तो पेरेंट्स के हिसाब से सोचा जाए तो ये डॉक्टर वाला माहौल है। तो एक एक्सपेक्टेशन उनकी जो फुलफिल करने की थी, तो एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मेरे पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए अच्छा ये सोशल वर्क कर रहा है तो उसने कुछ नहीं किया। तो उनके लिए जो पढ़ाना चाहते थे, पेरेंट्स का जो विजन था वो उन्होंने खत्म कर दिया। तो उनके हिसाब से मैंने उनको आउटपुट दे दिया कि भाई मैंने डॉक्टरेट का डिग्री ले लिया, मैं जॉब भी अच्छे से करता हूँ, कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत नाम भी कमाया है इधर। तो कभी कभी बोलते हैं पेरेंट्स, अच्छा ये आपका बेटा ये कर रहा है, अच्छा गाँव से कैसा होता है कि लोग इधर आते हैं सिटी में, आनंद तो थोड़ा दूर है हमारे सौराष्ट्र से, तो ये स्टूडेंट एजुकेशन हब है। तो कभी कोई बच्चे को गांव से कोई छोड़ने आता है, एडमिशन के लिए आते हैं, तो क्या होता है एक माहौल होता है ना कि ये हमारे गांव का लड़का है, ये हमारे गांव का है। तो कोई पेरेंट्स से बात करके आता है, पापा से कॉल पे बात करते हैं, फिर नंबर देते हैं, पापा बोल रहे ये मिलने ना। और जब आके मिलते हैं, और मैं मेरा तो ये बहुत अच्छी कॉलेज में काम चल रहा है, हर एक कॉलेज में, तो जब वो कॉलेज के प्रिंसिपल को मैं मिलने जाता, अच्छा अच्छा आओ बैठे बैठे, तब उनको लगता है कि अच्छा ये इनका बेटा ये कर रहा है, अच्छा माहौल है, पॉजिटिव है, थोड़ा सोच है। तो वो जाके जब पेरेंट्स को बताएं तो मेरे लिए वो पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट नहीं है, मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए ये कुछ गलत कर रहा है। तो प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली बोला जाए तो ये प्राउड मोमेंट है। पर्सनली जो मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये है कि मैंने ये 11-12 साल हो गए मेरे, ये 13 से रनिंग है। तो उसमें मैंने आज तक जितना हो सके उतना मैंने ट्राई किया है एक लेवल पे पहुंचाने के लिए। आज भी मतलब एनजीओ इन आनंद हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आप एनजीओ इन आनंद करो गुजरात में, तो सबसे पहले गुजरात में गूगल में हमारे एनजीओ आनंद में करो आप, तो सबसे पहले मेरा ही आता है कि मधुवन फाउंडेशन। सारा इंफॉर्मेशन हमारा ऑनलाइन ही है, चाहे आप इंस्टा ले लो, फेसबुक ले लो, वेबसाइट ले लो, सारा। अच्छा हो सकता है कई बार हमने 15 दिन, 1 महीना, 2-2 महीने तक अपडेट भी नहीं किया होगा, पर आज भी हम वहां पे हैं। और लोग आते कैसे, गूगल करके आते हैं, हमें कोई नहीं जानता है। अच्छा, 1 रुपया भी आज तक हमने एडवर्टाइज में खर्चा नहीं किया, जीरो बजट में एनजीओ चला रहा है, आराम से चलता है, बहुत अच्छा नाम है। इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं। अभी फिलहाल ही एक फ्रांस से एक बच्चे ने कॉल किया है, ऑनलाइन किया है। अच्छा, उनके रिलेटिव्स इधर रहते हैं आनंद में, हो सकता है तो मैं उसका फीडबैक एक बार होगा तो मैं आपको फीडबैक भी शेयर करूंगा उसका। उसने उसके पेरेंट्स इधर एक अच्छी क्लब में इन्वॉल्व है जो सोशल वर्क बहुत अच्छा करते हैं। फिर भी उन्होंने गूगल से देखा तो मधुवन देखा तो बोले नहीं मुझे वहां पे मधुवन है उसमें कर रहा है। तो उसके जो रिलेटिव्स मुझे मिलने आए, बातचीत भी हुआ,
तो बोले मैंने उनको बोला कि इधर है हमारा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, फिर भी उन्होंने नहीं, आपसे काम तो उनका मधुबन का अच्छा है। तो वो वैसा माहौल आता है तो वो मेरे लिए प्राउड हूँ मैंने। बस मधुबन बढ़ना चाहिए, एक ब्रांड होना चाहिए और उससे कुछ लोगों का भला होना चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जी सर, जी सर, हम भी चाहेंगे कि भाई बहुत सारे आगे बढ़े आपका मधुबन फाउंडेशन, और बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं इससे, होनी चाहिए, दे शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस ब्यूटीफुल मधुबन फाउंडेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ग्रोथ टू द हुँ, सोसाइटी। यस सर। हुँ, जी सर, अगर भगवान हुँ, भगवान जी आपके सामने आए और आपको हुँ, एक तोहफा दे दिए और हुँ, कहे विक्रम आप ये तोहफा ले लीजिए, तो जी। कौन सा तोहफा, कौन सी शक्ति आप चुनेंगे? भगवान ऐसा मौका इन केस देते हैं, कुछ तोहफ़ा कि भई ये आपकी तोहफ़ा आपको दे रहे हैं। तो मैं कभी मतलब पैसे और ये सब कभी पोज़ीशन ये सब कभी नहीं माँगूँगा, क्योंकि पैसा भी एक टाइम के लिए चला जाता है, पोज़ीशन भी एक टाइम के लिए चली जाती है। मतलब एक लेवल लास्ट लेवल देखो तो हमारा प्राइम मिनिस्टर्स है, तो प्राइम मिनिस्टर भी कभी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल के बदलेंगे। पर एक ऐसा टैग और एक ऐसी स्किल भगवान दे जाए, जिससे मतलब हमारे पास कोई आ रहा है तो उसका मतलब कुछ भी काम है और हमारे एक कॉल से, एक पॉइंट बोलने से उसका काम हो जाना चाहिए। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो लाइफ में, पर वो काम पॉज़िटिव होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी का कि मतलब यहाँ फँस गया है और ये छुड़ा लो पुलिस वाला, वो काम नहीं। पर पॉज़िटिव वे से कोई भी ऐसा इंसान आए कि मेरे को ये ज़रूरत थी, मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला है, अच्छा मेरा बच्चा स्पोर्ट में नंबर 1 इंडिया में जा सकता है, उसके पास ये नहीं है, वो नहीं। तो वैसा कोई भी पॉइंट है तो मतलब भगवान बोलते हैं तथास्तु। तो कोई भी हमारे पास है तो हम बोले नहीं तथास्तु हो जाना चाहिए। मेरा कभी नाम नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए कि मधुबन फाउंडेशन से ये हुआ। बस वो वाला भगवान एक स्किल दे दे और जितना हो सके उतना भगवान हेल्प करने के लिए हमें स्किल दे। अच्छा, एक पैशन दे थोड़ा। कई बार ऐसी मुसीबतें आ जाती है कि जिसमें हम मतलब सँभल नहीं पाते हैं। तो कोई भी मुसीबत लेके कोई भी आ रहा है तो हमें भी सँभल के उसको सँभालना है। तो ऐसा कोई स्किल भगवान दे दे कि जिसमें हम बोले कि नहीं ये हो ही जाएगा, तथास्तु वाला ही माहौल होना चाहिए। उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर जी, शेयरिंग। और हम चाहेंगे कि भगवान आपको, ही ब्लेसेस यू एंड जी, योर विश एंड ड्रीम कम्स ट्रू। जी। यस सर। जी सर, आप मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेंटल हेल्थ की अभी को जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊँ आपको। तो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ बहुत काम करता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। ऑनलाइन वॉलंटियर्स भी मुझे मिलते हैं। कई बार किसी की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो पाती है, कई बार नहीं भी हो पाती है। कई बार होता है कि मैं उनको टाइम भी नहीं दे पाता हूँ। तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन उनको लग रहा है अच्छा ये तो बोल रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो जब अभी उनके साथ मैं काम करूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी का ये जो यंग जनरेशन है या अभी आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। अभी के बच्चे मेंटली 0.01% भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि आप उसको एक भी पॉइंट कुछ बोल दो ना, तो उनको बुरा लग जाता है, वो नहीं लगना चाहिए। अच्छा मैं जब छोटा था मतलब तो हमारे तो फैमिली में हम रहते थे कम्युनिटी में, तो होता ये था कि अभी हम बात करें कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, वैसे जनरली नहीं मारना चाहिए। पर पेरेंट्स मारते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा था तो मुझे मेरे पेरेंट्स कुछ मारते थे या थप्पड़ मार दिया तो समझ में आता है। पर उस टाइम पे माहौल ऐसा था कि पेरेंट्स तो ठीक है, गाँव के चाचा, काका, मामा कोई भी मार के भी चला गया और कुछ गलत किया, तो भी पेरेंट्स ऊपर से बोलते थे नहीं उसको 2 और लगानी चाहिए थी। वो कभी बोलने नहीं जाते थे ऐसा क्यों मेरे बच्चों को मारा? तो उससे क्या रहता था सबका माहौल मेंटली स्ट्रॉन्ग रहता था। अभी का माहौल जो चल रहा है उसमें क्या है कि बच्चों को उसके पेरेंट्स भी कुछ बोल जाए। मेरे बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्ज़ाम दे रहा है, पढ़ रहा है, मैं बोला नहीं-नहीं इतने मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, तो उसको बुरा लग जाता है। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा किसी बच्चों को किसी पेरेंट्स ने कुछ बोला कि नहीं आप ये गलत जगह जा रहे हो, इसके साथ नहीं बैठना है, तो वो फ्रेंड्स को जानता नहीं एक वीक भी हो गया है, फिर भी क्या होता है बोला नहीं-नहीं वो सही बोल रहा है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनके सेशंस होने चाहिए। उसको ऐसे मतलब कोर्सेज़ डेवलप होने चाहिए जिसमें बच्चा कंपल्सरी उसको अटेंड करे। जैसे कॉलेज में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए जिसमें सिर्फ़ मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाए। मुझे इतना तो वो मेंटल हेल्थ के बारे में पता नहीं है जनरली। पर हाँ, एक चीज़ है कोई भी सिचुएशन आए तो उसमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए इंसान। क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग आप रहोगे तभी कुछ हो पाएगा। जी। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग। डियर सर, आगे आने वाले 50 सालों में किस तरह हुँ। के बदलाव हो सकते हैं? अ, आगे जो 50 साल की जो आप बात कर रहे हैं उसमें बदलाव तो पहले तो ऐसे होंगे कि एक तो मतलब जो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम है वो तो अभी से खत्म हो गया है। हो सकता है
आगे 50 साल की बात तो दूर है, पर 10 साल के बाद ऐसा माहौल आए कि लोग ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाए कि मुझे जॉइंट फैमिली में ही रहना है, और वो हमारे इंडियन सिस्टम में तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में क्या है, आपको रहना है, आप वहाँ पे रहोगे, तो क्या होगा, आपको कहीं न कहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाएगा। और जॉइंट फैमिली से ये सिस्टम भी ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, अच्छा हमने अभी क्या फ़ॉलो किया मैं बताना चाहूँगा, मॉडर्नाइज़ेशन की हम जो बात कर रहे हैं ना, तो मॉडर्नाइज़ेशन में हम क्या करते हैं, जनरली हम मॉडर्नाइज़ेशन की बात क्या करते हैं, यूरोपियन कंट्री को हम फ़ॉलो करते हैं। मेन तो हम यही करते हैं ना। अच्छा, इससे माहौल क्या हुआ, जो यूरोपियन कंट्री हमें बता रही थी आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले, वही पॉइंट हमने क्या किया, हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की, एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो हम ये मानते हैं जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है, 10 लोग साथ में रह रहे हैं, मामा मामी चाचा चाची या दादा दादी या 2-3 बच्चे जो भी रह रहे हैं, तो उसको हम जॉइंट फैमिली मानते हैं। वही चीज हम न्यूक्लियर फैमिली किसे मानते हैं, कि मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, मतलब न्यूक्लियर फैमिली। ये कंसेप्ट दिया किसने, यूरोपियन कंट्री ने दिया, क्योंकि उनको साथ रहने में या मतलब अलग रहने में कोई फर्क नहीं है। उनके साथ भी रहे दादा दादी चाचा चाची, या फिर न्यूक्लियर फैमिली मतलब वो बच्चा कोई बोल रहा है मुझे नहीं रहना है आपके साथ, तो वो चला गया, तो मतलब वो न्यूक्लियर है, क्योंकि उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। पर हम इंडियन में हमारी जो भारतीयकरण की बात करें, उसमें हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि हम ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रह रहा हूँ, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, पर इमोशनली मैं मेरे सारे फैमिली के साथ कनेक्टेड हूँ। हम अलग कैसे हुए, कि मतलब बिजनेस के हिसाब से, एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज इसलिए हुआ क्योंकि मुझे जॉब करने के लिए कोई और स्टेट में जाना है या फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तभी हम छोड़ के अलग हुए हैं। मेंटली हम अलग नहीं हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं मेंटली अलग होने की, तो एक सिंपल वे, आप बताओ कि मैं अभी हूँ और मेरी फैमिली में कोई भी सिचुएशन आज बन गई, तो मैं सारा सब कुछ, मेरे सारे पॉइंट छोड़ के दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं सुबह सबसे पहले मैं मेरी फैमिली के साथ पहुंच जाऊंगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं? हम सिर्फ, हमारे रहने का प्लेस चेंज हुआ है, प्लेस सेपरेट हुआ है, हम अलग नहीं है। तो वो मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट को छोड़ के ज्वाइंट फैमिली का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में न्यूक्लियर फैमिली में कैसे कन्वर्ट हुआ, और उसको हमें कैसे पॉजिटिव वे में ज्वाइंट फैमिली में वापस कन्वर्ट कर रहा है, उसी पॉइंट पे हमें काम करना है। तो ये एक सिस्टम है जिसमें हमें ये करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन को ना मान के, भारतीयकरण के हिसाब से सोच के, और ये बदलाव जो आएंगे वो बदलाव को समझ रहे हैं। तो जो आने वाले 50 साल है उसमें ऐसा होगा कि हर घर, मतलब 10 साल में तो वैसे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि 10 साल के बाद हर एक घर में 1-2 मेंटल मिलेंगे, ड्यू टू मोबाइल, एंड्रॉइड फोन। जो बच्चे प्राउडली, जो मदर बोलती है ना कि मेरे बच्चे अभी मतलब पहले दौर में, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में है या फिर सेकंड स्टैंडर्ड में है, और उसको सारा सब कुछ मोबाइल में पता चल रहा है, उसको सारा मोबाइल में आ रहा है। अभी रिसेंटली एक किस्सा आया था, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था, पता नहीं सच है झूठ है, पर वो एक बच्चा जो एंड्रॉइड फोन से पढ़ा था, वो जंगली रमी खेल रहा था, वो 50,000 का वो हार गया, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नोट में लिख के गया वो कि भाई मैं ये इसकी इसी वजह से। तभी क्या होता है, उसके पेरेंट्स को ऐसा महसूस हो जाता है कि अच्छा, इसका प्राउड फील नहीं करना है, इसमें हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जो भी पॉइंट है, जो भी बच्चे अभी सीख रहे हैं, अच्छा अभी की जनरेशन, पहले की जो जनरेशन थे, जो बच्चे थे उससे 10 गुना आगे है, उसको सब कुछ। अच्छा पहले ऐसा था कि कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको कुछ नहीं आता है, अभी फर्स्ट में जाता है उसको सारा सब कुछ पता है, कुछ भी बाकी नहीं। तो हमें उसको पॉजिटिव लेके, उसको कम उम्र में कैसे उसको डेवलप करना है, उसका ग्रोथ कैसे करवाना है, और कैसे उसे पॉजिटिव वे के हिसाब से उसका माइंड डाइवर्ट करना है। जो डाइवर्जन वाला पॉइंट है ना, वो डाइवर्जन वाले पॉइंट में उस पॉइंट नेगेटिव डाइवर्ट ना हो जाए, और पॉजिटिव में उसमें मैं कन्वर्ट करना है। तो 50 साल में मेरे हिसाब से, एक तो इकोनॉमिक ग्रो करेंगे लोग, यहाँ पे जो इस हिसाब से बात करें, इंडिया तो हमारा वैसे भी टॉप पे चला ही गया है, तो टॉप फर्स्ट पे रहेगा ही। और उस हिसाब से ऐसा हो सकता है, जैसे सब लोगों ने बताया कि मतलब 10 साल के बाद ऐसा हो सके कि फॉरेन वाले स्टूडेंट, फॉरेन में जो पढ़ने गए वो बच्चे हमारे तो इधर आ जाएंगे, उसके अलावा फॉरेन वाले भी इधर हमारे आके काम करेंगे, क्योंकि सच में जो हमारे पास है ना, वो किसी और के पास नहीं है। हमें सिर्फ भारतीयकरण करने की जरूरत है, तो सबसे फोकस करना है भारतीयकरण। तो वो भारतीयकरण के हिसाब से हम जाएंगे तो फॉरेन वाले हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ काम करेंगे। हो सकता है अगले 50 साल में फॉरेन से लोग हमारे साथ इधर आए और मधुबन में जॉब भी कर सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है हमारे लिए, तो वो भी हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दैट।
डियर सर, अगर आपको मौका दिया गया किसी और का जिंदगी जीना है और फिर हम्म, लौट के आना है, एक मशीन आपके हाथ में दी है, बस एक हाँ, बटन दबानी है, तो आप पुराने जमाने में चले जाएंगे, वहां किसी और का जिंदगी जी ले, फिर आ जानी है, तो आप किसका जिंदगी जीना चाहेंगे? अ, वैसे तो मेरे आइडियल रोल मॉडल तो भगवान कृष्ण है। वैसे तो वो भगवान है, तो भगवान की ज़िंदगी तो हम कभी जी नहीं सकते। बाकी उन्होंने उनकी लाइफ़ में सारा सब कुछ किया है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मतलब किसी को कोई बोल पाए। सारे जितने भी रोल्स हैं, सारे रोल उसने परफेक्ट अदा किए। तो वो भगवान है, वो तो नहीं कर सकते। पर हाँ, एक चीज़ है कि मतलब हम सोच सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जैसा हम सोच सकते हैं। उनके विचार, उनके थॉट्स, वो जो युद्ध के लिए जो सोचते थे, वो सोच के हिसाब से बस एक पल भी जीने के लिए मिले तो वो भी हमारे लिए बहुत है लाइफ़ में। जी। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी सर, अभी एक छोटी सी राउंड होगी, उसको रैपिड फायर राउंड कहते हैं। जी। तो वहां पर आंसर्स वन वर्ड या टू वर्ड्स में, छोटी सी शॉर्ट, एक 10 मिनट में लूंगी आपसे। यस सर। So, friends, we had a lovely time getting to know about the thoughts and views of our special celebrity. He's Dr. Vikram Jogarna, a social activist and a professor as well, the founder of Madhuvan Foundation. And he has been sharing his thoughts and views very clearly across the table. And we are very happy to have had him here today with us on the International Fab Talks. Join me, my dear friends, to get to know more about his likes and dislikes. Dear sir, ये राउंड छोटी सी राउंड होगी, जहां पर जी। सिलेक्शन करनी है आपको। 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस देंगे हम। जी सर। ओके। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सातों हाँ, दिनों में आपका सबसे फेवरेट दिन कौन सा है? संडे। आप जल्दी दूसरों को माफ कर देते हैं, हाँ या ना? ना। मैं भी आपकी तरह हूँ। माफ कर देते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा करते गए तो माफ कर ही नहीं सकते ऐसे कर ही लोग। नहीं सकते जी। जी। अगर एक स्केल, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, कितने पॉइंट्स आप दे सकते हैं अपने आप को माफी को लेके? प्रोफेशनल वे में दे सकता हूँ 9। जी। सर, आपको चाय या कॉफी पसंद है? चाय। अभी टेक्सटिंग या कॉलिंग, कंफर्टेबल कौन सी है? कॉलिंग। आपको कौन सा कीड़ा नहीं पसंद? कीड़ा। कीड़ा। हाँ, ऐसा इंसेक्ट। कुछ नहीं है। ऐसा ऐसे कुछ जो नहीं। मॉस्किटो है या फ्लाई मक्खी है, या फिर मॉस्किटो अभी बोल सकते हैं। मॉस्किटो बोल सकते हैं, जी हम्म। जी। एक अच्छा दिन, प्यारा सा दिन, बस एक शब्द में। पापास बर्थडे। दैट्स रियली नाइस, थैंक यू। सर, जब आप दूसरों का मदद करते हैं, क्या आप कुछ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कुछ तो? थोड़ा सा यस, ऑलवेज। आई लाइक द हॉनेस्टी, आप है ना, जो मैंने पहले भी कहा था कि भाई एक यस, हॉनेस्टी है ऑलवेज। आप। जी। शहर में, सिटी में, शहर एंड सिटी इज वन ओनली, राइट? तो यस, यस, शहर, छोटी सी गांव, या एक टाउन, कहाँ पर गांव। रहना चाहिए? गांव, 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 विलेज, ओनली विलेज। जी। अब जब सफर करते हैं, तो रोडवेज या तो रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, कौन सा पसंद करेंगे? ज्यादातर प्रेफर करता हूँ बस और ट्रेन। जी। लेकिन लंबी सफर बस में मुश्किल होती है सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं बाइक पे भी बहुत कर लेता हूँ। 200 जी 300 किलोमीटर बाइक पे भी चला जाता हूँ। जी। पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज बस और ट्रेन। बहुत लंबी है तो ट्रेन। लंबी है तो ट्रेन, वही मैं बोल रही हूँ, तो बस हाँ, तुम लोग रोकते ही नहीं, फिर हम लोग को भूख हाँ, लगती है, फिर रेस्ट रूम जाना है हाँ, तो रोकते भी नहीं बीच में, तो बहुत हाँ सारे बुरे जी। एक्सपीरियंसेस है बहुत हमारे। लंबी है तो ट्रेन इज प्रेफर। जी जी। जी सर, कौन सा सीजन आपको अच्छा लगता? विंटर। मौसम, मौसम। विंटर, विंटर। विंटर, विंटर, फिलहाल अभी तो विंटर ही चल रही है, तो विंटर ही बहुत चल रहा है। प्लेजेंट है ना? जी। यस। खाना खाने में आप कौन सा इंडियन फूड पसंद करते हैं या बेकरी आइटम्स पसंद करते हैं? इंडियन फूड। इंडियन का सबसे बड़ा स्वीट, इंडियन स्वीट? सबसे बड़ा स्वीट लड्डू। मोतीचूर के लड्डू मोतीचूर के लड्डू। या कुछ और? नहीं, नहीं, मोतीचूर के लड्डू। जी। सर, आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या थोड़ा सा रात में देर तक जाग के फिर सुबह में मुश्किल है उठने के लिए, ऐसा कुछ है? मुश्किल है थोड़ा। रात में देर तक जाग लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल है। जी, हम भी उसी के रेंज में हैं, थोड़े से देर से जागते हैं, सुबह में उठने के लिए बहुत तकलीफ होती है। बहुत मुश्किल है। जी।
सर एक बड़ी सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन, ये एक लाइफ स्किल है, पकाना। पकवान आती है आपको? ओनली चाय। ओनली चाय? यस। ओके, इज इट डिकॉशन या दूध वाली चाय? दूध वाली चाय। जी। मसाला चाय या ऐसा जिंजर चाय या जस्ट प्लेन चाय? नहीं, जस्ट प्लेन चाय। प्लेन ओनली चाय। जस्ट प्लेन चाय। जी सर। जब आप स्कूल में थे तो आपका सबसे बड़ी फेवरेट टीचर या सर ऐसे कोई थे तो उनका नाम बता सकते हैं सर? अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, अश्विन सर है एक, जो स्कूल में था तब फेवरेट है। बाकी आफ्टर कॉलेज और ये मास्टर्स में तो अभी एक मैडम है जिसके अंदर मैंने एमएसडब्ल्यू, एमफिल, पीएचडी सारा उनके अंडर किया, तो डॉक्टर शिवानी मिश्रा मैडम। जी जी। सर, सॉल्टी, स्वीट, स्पाइसी, बिटर, लाइक आई पुट इट, खट्टा, मीठा और तेज, ओनली स्वीट, ओनली स्वीट। ओनली स्वीट। ओह ग्रेट, यस। दैट्स रियली नाइस। सर, अपने आप को एक इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट समझते हैं? नो, ऐसा तो कुछ है नहीं। या इंट्रोवर्ट का मतलब किसी से नहीं मिलना, एक्सट्रोवर्ट से सभी मिलना, हाँ, एम्बीवर्ट का मतलब दोनों से मिलना। मतलब नॉर्मली जनरली ऐसा देखा जाए तो सबको मिलना है। या सो दैट इज लाइक यू कुड से। दोनों। यस यस। सर, अब जब अकेले हैं, बैठे कुर्सी पे, कोई भी नहीं है आपके कमरे में, कोई गैजेट भी नहीं हाथ में, तो बस अपने सोच के साथ कनेक्टेड विद योर थॉट्स, तो तब यस। आपका सोच आपको कहाँ ले जाती है? पुराने जमाने में, या पुराने ख्यालात या मेमोरीज के साथ, या आगे क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं, या अभी अभी क्या हो रही है, ध्यान उसी पर रहती है? नहीं, जनरली फ्यूचर में ही जाता हूँ, तो मतलब ऐसे कुछ गैजेट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब सोच कहाँ से कहाँ, मतलब बोलते हैं मन जो है, माइंड जो है, उसकी कोई स्पीड नहीं है। वो मतलब एक 0.01 सेकंड में यहाँ से अमेरिका, मतलब अमेरिका पहुंच गए, मतलब उतनी स्पीड में। तो मैं उसमें एक ही चीज सोचता हूँ कि इन फ्यूचर, अच्छा मैंने ये सोच लिया, ये प्लान कर लिया, ये प्लान, ये प्रोग्राम होगा, ये प्रोजेक्ट के बारे में सोच लिया, मतलब रिजल्ट भी सोच लेता हूँ उस टाइम के लिए, फिर वापस आ जाता हूँ। जी जी जी, वेरी नाइस। मुझे ये अच्छा लगा, रिजल्ट भी देख लेना वहीं पर, तो विजुअलाइज योर स्ट्रेंथ, विजुअलाइज इट। विजुअलाइजेशन प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू। डियर सर, सोशलाइजिंग या मी टाइम? सोशलाइजिंग या अपने लिए वक्त निकालना, खुद के साथ रहना, या लोगों से मिलना, कौन नहीं, सा अच्छा? सोशलाइजिंग, लोगों से मिलना, क्योंकि खुद को तो वक्त देते हैं, पर जितना सोशलाइज होंगे उतने ज्यादा कुछ सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक चीज। आप ज्यादा सोचते हैं या कर देते हैं काम? बिना सोचे ही कर देता कई बार। बिना सोच के कर देते हैं कभी कभी। हाँ। जी जी डिसीजन मतलब इंस्टेंट डिसीजन होते हैं, जी फिर जी बाद में देख लेंगे, और हो भी जाते हैं पॉजिटिव वे। जी। सर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ज्यादा गौर करते हैं या किताबों से पढ़ना? नहीं, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। जी सर। घर का खाना या बाहर का खाना? हाँ, घर का। एप्पल, सेब या समोसा, कौन सा चुनेंगे आप? ऑलवेज एप्पल। जी जी जी। सर, आपको गिफ्ट देना पसंद करते हैं या लेना पसंद करते हैं? जनरली तो दोनों नहीं, मैं किसी को कभी, बहुत रेयर केस में किसी को गिफ्ट दिया हूँगा, और जनरली मैं किसी को लेता बहुत कम लेता हूँ। बहुत मतलब पास में कोई है, बहुत खास है, और वो दे देते तो नहीं मना कर पाए तो ठीक है। बाकी अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बहुत किसी से लिया और किसी को दिया हो। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा भी है कि कई बार ऐसा होता है कि बर्थडे में बहुत सारे गिफ्ट लोग देते हैं और लेते हैं। मेरा इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद है। मैं देता भी नहीं हूँ, लेता भी नहीं हूँ। लोग लेके आते, मैं ऐसे जाता तो भी लोग खुश हो जाते हैं। तो मैं इसमें मतलब ये ऐसी चीज़ों में बिलीव बहुत कम करता हूँ। जी जी। आप पानी के लहर पर, वहां पर बीच समुन्दर के किनारा पर चलना अच्छा लगता है, या एक वन में रहना पसंद कर, थोड़ी देर बिता कर आने का मन हाँ, लगता है? और जंगल में, वन में रहना अच्छा लगता है, पानी की लहरों की वजह से। कृष्ण भगवान भी इसलिए थोड़ा वन में जाके ऐसा जंगल में, हाँ, है वहाँ ये। एनवायरनमेंट, नेचर मिलता है, तो आपके मतलब ऑटोमेटिक जो थॉट्स है ना, वो ऑटो डाउनलोड होते हैं वहाँ पे। जी हमें यहाँ डाउनलोड करने पड़ते हैं, वहाँ ऑटो डाउनलोड होता है, हो ही जाते हैं। आपको थोड़ा वाइब्रेशन भी मिलता है। जी जी। सर, आप हमारे लिए एक छोटी सी गाना गा सकते हैं, कोई भजन ऐसा? हम्म, छोटी सी, 2 लाइन। इतना तो मुझे कुछ मतलब सिंगिंग तो इतना आता नहीं है, पर हाँ, ट्राई एक कीजिए। चीज़ है कि मतलब मैं जो यहाँ पे गुजरात में डायरा फेमस है, थोड़ा बहुत आपको पता हो तो बहुत सारी बार बीच में आया था, टीवी में आ जाता है कि लोग पैसे इतने सारे उड़ा रहे हैं, वो ये वो।
तो वो जितने भी पैसे होते हैं वो जो भी उड़ा रहे हैं ना, वो जो कलाकार है वो लेके नहीं जाते। वहाँ पे वो गौशाला है या अनाथ आश्रम है, उसके लिए पैसे के लिए वो मतलब वन काइंड ऑफ फंड रेजिंग प्रोग्राम होता है वो। तो मुझे उसका शौक है, तो मैं उसके गाने ज़्यादा सुनता हूँ। तो भगवान के या फिर हमारे जो गॉडेस है, उनके गाने में सुनता रहता हूँ। तो एक मतलब छंद है, दुआ है, वो मैं ट्राई कर सकता हूँ। जी है बहुत बेसुरा आवाज़ मेरा, इतना तो कुछ है नहीं। ट्राई कर सकता हूँ अभी। जी सर। अषाढुचारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम तदूर मयूर पुकारम तड़िया तारम विस्तार नाम लही संभारम प्यास पारम नंद कुमार मनिर क्यारी कह राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी जिरे गोकुल आवो गिरधारी। ये भी कृष्ण भगवान के लिए ही है, मतलब एक जी दोहा छंद है। रास मतलब जो गरबा प्ले करते हैं रास ओरिजिनली, उसका स्टार्टअप का ये छंद है एक। जी सर, बहुत अच्छा आपने गाया, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो यस मच। यस, हम सुनने के बाद में मग्न हो जाते हैं उसमें कि भाई और जी कहीं ध्यान नहीं है, बस वो गाना में और मग्न हो जाते हैं, वो गाना क्या है। और यू इट इज रियली वेरी एन्चेंटिंग, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच डियर सर। एक छोटी सी और छोटी सी गुजारिश है, जी एक अच्छी सी 3 शब्द हमारे लिए दे दीजिए। जैसा प्लीज, सॉरी, थैंक यू, शुक्रिया अदा करना, माफी मांगना, ये तो है ही है। इसके अलावा आपकी तरफ से एक अच्छी 3 बातें हमारे लिए, 3 स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जहां पर हम कंसंट्रेट करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जनरली देखा जाए तो ये जो आपने बोला तो मैं उसमें बोलूंगा कि बीच में प्लीज सॉरी वर्ड्स हम ज्यादा बोलते हैं। तो मैं बिलीव इसमें करता हूँ कि जिसका कोई ऑथर हो, जिसका कोई वैल्यूज हो, तो मैं कई बार कोई सॉरी बोलता है तो मुझे बोलता है अच्छा इसका ऑथर कौन है मुझे बता दो, तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा आपका सॉरी। जी 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 जी। मुझे सच में नहीं पता इसका कोई ऑथर है कि नहीं, पर मैं ऐसे बोल देता हूँ इसका ऑथर कौन है मुझे बता दो। ये वर्ड्स किसने दिया है, अब दिया होगा तो भी पता नहीं है, पर जनरली ऐसा हम बोल लेते हैं। तो मैं मेरी लाइफ में ऐसा सोचता हूँ कि मेरे लिए 3 वर्ड्स जो आप बात करें तो उसमें लिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे पॉजिटिव हो गया, प्लीज, सॉरी, ये वर्ड्स लोग देते हैं। तो मैं एक ही चीज देना चाहूंगा कि जैसे वो मूवी तो बोलते हैं आई मी माई सेल्फ, वो भी आ गया, ये सब कॉमन है। पर मेरे लिए ओनली मधुबन इज ए ब्रांड, मधुबन इज ए ब्रांड एंड मधुबन इज ए वन ब्रांड। बस ये मेरे लिए यही है। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, आई लाइक द हॉनेस्टी। मैंने कहा ना, आपका जो एक सच्चाई है अंदर से कि भाई इट्स ओके टू जस्ट लव योरसेल्फ, टू लव व्हाट यू आर डूइंग। And yes, sir has shared the 3 magical words here. It is Madhuban Foundation, Madhuban Foundation, Madhuban Foundation. Yes, sir, we wish you all the best and we'd love to connect with थैंक you यू सो and मच। Madhuban Foundation. I really enjoyed interviewing you. बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपका जो सच्चाई है, जो करना चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी से, और जो सोसाइटी आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो पूरा आपने स्पष्ट बता दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा भी लगा जो आपने शेयर किया ये सब कुछ हमारे साथ। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि पहली बार मैंने मतलब, हाँ एक पॉइंट है कि मैंने बहुत टाइम हमने डिले हुआ थोड़ा बहुत, पर हाँ अच्छा लगा मुझे भी कि मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थॉट्स है जो मैं आपके जरिए थोड़े बहुत मेरे, कई बार होता है ना कि वो मतलब दिल में हो तो वो आता नहीं बात, कई बार हम शेयर नहीं कर पाते। तो बातों बातों में आपने बहुत कुछ पूछ लिया, तो बहुत कुछ मैंने भी शेयर कर लिया। तो मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक इंटरनेशनल पॉइंट पे मैंने भी मेरे एक पॉइंट रखा कि चलो मैं भी ये सोचता हूँ। जी जी। You're welcome again to the International Fab Talks. दोबारा आइए फिर और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो विचार है, थॉट्स है, नेक है। और आप जो आपका नया प्रोजेक्ट जो है, आपने कहा कि भाई यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द मिल्क, जो द जी मिल्क यू वांट टू शेयर इट विद ऑल द न्यू मदर्स टू डेवलप देम फिजिकली एंड मेंटली, कीप देम स्ट्रांग। तो वो जी बहुत अच्छी बात है। दोबारा हम बुलाना चाहेंगे आपको इस मंच पर, फिर आनी चाहिए आपको। श्योर मैम श्योर, दोबारा भी हम इसी पॉइंट पे आएंगे और कोई प्रोजेक्ट का जो है मतलब डिटेल में जाएंगे जिसमें हम कुछ बता पाए, किसी से कुछ भी एक पॉइंट किसी से हम सीख लें तो वो भी हमारे लिए भी बहुत जी है। सर, जी सर। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक सर। यू सर, वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। My dear friends, with this we come to an end to the International Fab Talks. Thank you for being with us. Thank you for learning with us, and learning from the unsung heroes is always a pleasure. Then, instead of learning something from the film stars, the politicians, we have the unsung heroes who are teaching you how to live life, how to think in the right way, and how to give back to the society. Stay safe. Dhanyawad. Thank you, sir.